Okay, namaskar. We are going with our webinar that is scheduled today. First and foremost, friends, I, along with CA Abhijit Kelkarji, Regional Council Member, CA Jiten Saglani ji, Secretary of the Nagpur Branch, CA Sanjay Agrawal ji, Treasurer Nagpur Branch, CA Akshay Gulani ji, Chairman Vikasa 2020, and coordinator for today's webinar as well. Duly recognize the presence of CA Chandrasekhar Chitade sir, Honorable Central Council Member from Pune, who also is Chairman of Corporate Laws and Corporate Governance Committee, who is also gracing the occasion and will be blessing with his inaugural remarks as well. CA Dhara Gandhi ma'am from Mumbai, who will be guiding us with respect to Tally software. Further, I, on behalf of Nagpur branch of WRC of ICI, along with Bhuj branch led by CA Harshit Shah, Bharuch branch led by CA Jitendra Ji Thakkar, Satara branch led by CA Anand Ji Kasat. On behalf of Satara branch, CA Rishikesh Wangde Ji, who is Chairman Vikasa, is there with us. Pimpri Chinchwad branch led by CA Simran Lilwani Ji, welcome you all to the webinar, especially for senior members, which will enrich us with respect to essentials of Tally software. Friends, I am really happy for two reasons that I can't stop myself from sharing. Friends, Nagpur branch is the only one in country which is probably planning webinars after studying the real need of members, keeping in view of other ones being organized simultaneously by other branches. Repetition of same sort of topics doesn't serve the purpose, and hence Nagpur branch organized webinars exclusively for lady members. Then a series of webinars was planned for senior members. One was done for Excel with Dhananjay Gokhale from Nagpur. Now for Tally, we are here with CA Dhara Gandhi ji from Mumbai. Second reason that I must share on this occasion, it really makes me happy when I find that about 225 plus members are going to attend this webinar. It feels great when we find our efforts working out and members are attending in large number to take benefit of deliberations. Friends, I will be following my duties if I don't share the efforts and pains of other leaders at branch. That is CA Siran Lilwani ji from Pimpri Chinchwad, CA Anand Kasat ji from Satara, CA Harshit Shah and CA Jitendra ji Thakkar from Bhuj and Bharuch branch of Gujarat have taken all efforts to spread word for the program and ensure effective attendance of members for the webinar. On forthcoming front, two unique webinars are being planned for members with more than 2 decades and for newer opportunities to explore. Friends, I sincerely appeal you all to please stay in touch with the efforts of Nagpur branch of ICI and take benefit of all the events and such ventures. I wish to share that when I contacted CA Dhara Gandhi ji for guiding, she readily accepted and said she always available to serve the fraternity. चंद्रशेखर चितड़े सर के बारे में जरूर कहूंगा कि जब भी नागपुर ब्रांच के लिए, नागपुर ब्रांच के मेंबर्स के लिए कोई टेक्निकल इश्यू या कोई गाइडेंस की जरूरत होती है, Chandrasekhar Chitade sir is always available. So I sincerely thank you, sir, for gracing this occasion. And yes, you are going to bless with your words of wisdom as well. And I also wish to welcome all the attendees for which the webinar has become a memorable one. Wishing you all a very joyous and fruitful session ahead. Thank you. I would now request Abhijit Kelkarji, RCM, Regional Council, to please guide us on the occasion. It's over to you, Abhijit bhai. Thank you, Chairman Kirit. Am I audible? Yes. Yes. Thank you so much for involving in this webinar. I appreciate the efforts of Nagpur branch for organizing various programs for the benefit of members and students. Such kind of webinars will keep the members abreast with respect to various developments. And I compliment all the managing committee members led by their effective chairmen to name namely Bhuj branch, Bharuch branch, Satara branch and Pimpri Chinchwad branch for joining hands with Nagpur for this webinar. I also extend my welcome to Chandrasekhar Chitade sir, Honorable Central Council member from Pune. Thank you, sir, for coming and joining us. Thank you to CA Dhara from Mumbai, an eminent faculty for the subject under consideration, and compliments to once again to Kirit for having a sector, I would say sector specific programs for youngster, for elders, for women, and so on and so forth. So keep doing such wonderful thing.
my compliments and best wishes are always with the organizers. I look forward to Chitle sir for more wisdom on this occasion. Thank you so much. Thank you, Abhijit sir, for your very apt words on the occasion. May I now request CA Rushikesh Wangdeji, Chairman Vikasa Satara branch, to please formally introduce CA Chandrasekhar Chitedeji. It's over to you, Rushikesh bhai. But it's a request to please unmute yourself first, Rushikesh ji. Yes, sir. Am I audible Yes, now, sir? Rushikesh ji. Yes. Yes, Yes. Rushikesh ji. Thank you, Kirit, for giving this opportunity. Chitre Sir ji is such a great personality that he needs no introduction. He is famous in all the parts of CA member. Still, for the formal introduction, I will introduce him. He is a practicing chartered accountant. He is member of Central Council of the Institute. He has been chairman of various committees of the Institute. He is also member of various standing and non-standing committees. He had been member of Pune branch, managing committee member. He was also chairman of the Pune branch. He is also very actively participating in all other committees of Chamber of Commerce and all other similar institutions. He has contributed to many textbooks which have been adopted as study material for intermediate and final curriculum of ICAI. He has written several articles in newspapers and periodicals, including Economic Times, CA Journal, Management Accountant, Taxman, Arthamanthan. He's such an extraordinary personality. If I start reading all his profile, it will take at least 1 day. So, without taking much of time, I now request Kirit sir to take the charge forward. Thank you, sir. Thank you, Rushikesh Yes, Kirit. ji. Yes, thank you, Rushikesh ji. Just as we all, yes, I am also eager to listen to CA Chandrasekhar Chitade sir for his words of wisdom on the occasion. It's over to you, sir. Chitade sir, it's over to you, please, sir. Well, thank you. नमस्ते और सभी को शुभकामनाएं। आज कोविड की मेहरबानी से हम सब शुक्रवार के दिन शाम को इकट्ठा हुए हैं। कई सारे निगेटिविटीज है कोविड में, एक पॉजिटिविटी भी चुन लेते हैं। As we know that this pandemic is going to be a long lasting, maybe more than 6 months, it would be very difficult to organize any program physical mode. So I compliment chairman of all these branches who have come together, and I think their brethren has strengthened on account of this COVID pandemic, that in a history so many joint seminars have not been organized. So let us really make best use of this particular period of no working. As we are aware that we are very anxious to know about the Tally software. Generally, while we enter the CA curriculum, we start articleship, then we take it for granted that yes, accountancy I know because I'm a commerce graduate, I know everything of accountancy. And really when the intermediate paper comes in hand, you realize how much limited knowledge you have of accountancy. You should have done much more. Same thing is in case of a Tally. Maybe day in and day out we are using Tally for various purposes, various clients are using Tally. But then there may be several aspects of Tally which we will need to learn. And such seminars give us occasion to revisit our knowledge of Tally and maybe to enhance it for the betterment of our profession. As we have now realized that work from home is going to be the order of the day, whether you like it or not, because as far as this COVID pandemic is concerned, it is most communicable disease. And then if you avoid human interaction, physical interaction, then only you can survive. And one way of avoiding physical interactions would be work from home. So these are various gadgets, including Tally, how to work from home. For Tally also now, when we had informal discussions in a group, which is preparing paper for the purpose of work from home,
it was realized that there are number of tools available, number of gadgets available, which are not very costly. But then with those gadgets, tools, etc., there are some limitations. Like supposing instead of saving your files on hard disk, if you save it on a Dropbox made available by a number of service providers, it is not very costly. But then some of the limitations were also noticed that, okay, if you have programs like Tally or some other programs for the purpose of preparing GST returns, preparing income tax returns, at times those programs are not available on this Dropbox. Likewise, for Tally also, perhaps Dhara will enlighten us that they have also started this cloud model, that you don't have to store anything on your screen or on your desktop or your hard disk. Maybe cloud will take care of it. So if the Tally has come out with this new model, how we are going to best utilize it and how it will save our time and our efforts, and also clients would be able to access to Tally from their own their respective computers. So friends, as far as small and medium practices are concerned, there are a number of alternatives, like maybe one can do taxation, one can do auditing. But as far as this taxation is concerned, gradually you will realize there is much simplification. As far as government is concerned, they have policy of non-adversarial tax regime, and maybe steps are being taken for the purpose of ensuring that litigations are at its minimal. And just to cite an example, typical thing like we had dispute about whether particular investment is a capital gain or a business income in case of shares, and then government has come out with a circular, particular CBDT, so that litigation is minimal. Even number of things are being done on computers, through emails, through websites. So tax practice is going to be limited. Even if there are hearings maybe sitting at your office or client's office, you'll be able to just reply, and not only at the 11 o'clock in the morning, but whenever you feel. Supposing in the evening you have time, at night you have time, you can select your time and upload your response to the hearing, or in some cases appeals are also being thought of this ways. So now the core competence of chartered accountants being accountancy, one will have to focus more on accountancy. After this particular pandemic, when I tried to appraise myself what chartered accountants in other countries are doing, and I realized that United States of America, which is housing the largest number of CPAs, there the small and medium practices, maybe more than 70% of them, they are mainly engrossed in compilation of accounts, record keeping. So I'm sure that maybe going forward, that also may be order of the day for small and medium practices. So it becomes necessary that you do not know Tally just for the purpose of auditing it, just for the purpose of doing one or the other application, but you should know Tally from very close quarters like an expert. And such webinars will definitely equip you in this behalf. I am very happy that Chairman Nagpur branch, Kirit Kalyani, his whole team of managing committee, the dynamic regional council member from Nagpur, Abhijit Kelkar, Chairperson Satara branch, Simran, this Rushikesh from Satara branch, Simran from Pimpri Chinchwad branch, and also our worthy chairman from Bharuch and Bhuj branch. I'm sure that this pandemic has provided you opportunity to come forward. Let me also inform you on behalf of the council that earlier we used to hold, or now also we continue to hold national seminars along with maybe direct taxation committee, maybe corporate laws committee. So it is possible for you to even continue with such national seminars. They will not be seminars, they will be webinars. Typical format of national seminars was maybe you have 2 full days occupied for the purpose of these seminars. But when it comes to webinars, the span of attention is very limited, because you have very focused attention before your computers, before your laptop, or maybe on your mobile. So what we have decided is there should be 2-3 days of maybe maximum 3 hours, not to test more patience of a professional. So that way you can definitely coordinate and have such national webinars also organized along with one or the other committee. I am sure that committees would wholeheartedly welcome your joint initiative. And if you want anything about any committee, maybe I'll be happy to coordinate and ensure that all those branches join together in organizing national webinars for the benefit of all across the country. So friends,
in adversities, let us try to find out what is the opportunity for us. Let us do some soul searching that, okay, I started practice maybe earlier, whatever work came to me, I kept on doing. But now going forward, what is going to be the order of the day? And let me tell you that one aspect one will have to consider when we consider of accounting standards or maybe transfer pricing. At times, the complexities are not comprehensible by all. But it is not, as a chartered accountant, they are not comprehensible at all. As a chartered accountant, definitely you are capable. The issue is limitation of time. If you are devoting time for studying commercial law, maybe you will not have adequate time to study other subjects. So it is for us to embrace, come together, and maybe from small and medium practices, grow them into large practices. Maybe make networking. Maybe it should be multidisciplinary. It can be multi-age. It can be multi-locational. But if we think big, then definitely it will happen. And the advantage of specialization will come to us. So friends, for today's topic, I'm told that Dhara is really an expert, and she will really open our eyes as far as this utilization of Tally is concerned. I would also request her to, if she knows about, of course, she would be knowing, time permitting, and that whether this Tally is available from cloud, and how best we can utilize Tally from cloud. Maybe going forward, if we store that Tally on cloud, maybe we are not required to interact with client. Client can separately access Tally. We also can separately access. Only thing is that whenever anybody's accounts are there, they are containing confidential information. So how this aspect of confidentiality we should take care of, because it is possible that in the wake of work from home, we may tell some of our staff members, maybe some of our articles, to really access this particular data on home and analyze it, maybe do auditing. So how we are going to ensure, because ultimately as a chartered accountant, we are abide by the code of conduct, which tells us that yes, confidentiality is the prime feature that as a chartered accountant, it goes without saying. So all these aspects also can be explained while she makes her presentation. And I compliment all the branches for taking this very useful initiative. And I'm sure in days to come, whether pandemic or no pandemic, you'll continue this association, which will benefit one and all in the profession. Thank you for inviting me to offer my inaugural remarks. Thank you. Over to you, Chairman Nagpur Batch. Thank you so much, Chandrasekhar sir, for gracing the webinar as well as blessing with your words of wisdom. I guess Akshay ji is now with us. May I request Akshay ji to please carry the proceedings further? Yes, Akshay ji. Thank you so much. Thank you so much, Chairman sir. Definitely, friends, the financial year is going to close. It is an important activity before we start working on the data. But now it is going to slow down everything, and maybe sometimes it is at standstill now. Today's webinar will definitely help all the members, senior professionals for getting the data analysis faster. Now I request Chairman of Nagpur branch, CA Kirit Kalyani sir, to give his welcome address. Over to you, Kirit sir. Akshay bhai has joined late. Yes, Akshay bhai, I have given my remarks, but yes, this is the beauty of technology. I am being requested again. Akshay bhai, we need to request Jitendra ji to introduce Dhara ji, and yes, moving ahead. Thank you so much, Akshay bhai, once again. Akshay bhai, because of technical issues, got disconnected, and yes, now it's kind of Jitendra ji. Yes, Akshay bhai, it's over to you again, please. Thank you, sir. I request Chairman of Bhuj branch, Jitendra Thakur ji, to please come forward and introduce our today's speaker, CA Dhara Gandhi ji. Jitendra sir, over to you. I think Jitendra sir has also lost the connectivity.
to brief about Dhara ma'am. She is basically born and brought up in Nagpur, but currently working in Mumbai. Excellent faculty for Tally, and definitely today we are going to get the words of wisdom from her. I straight away request Dhara Gandhi ma'am to please take over the charge and deliver her lecture. Dhara ma'am, over to you. Yeah. Thank you so much, sir. I would like to thank Nagpur branch, Bhuj branch, Bharuch branch, Satara branch, Pimpri Chinchwad branch for giving me such a great opportunity, and especially to Kirit Kalyani sir for remembering me for this topic. So we would like to start. I think that we are in short of time, so I think I should start my presentation and Tally features discussion. So I would request to just link my screen. Thank you, sir. So good afternoon, everyone. Basically, I'll try to cover maximum possible shortcuts or concepts or certain features of basically for tax audit and GST compliances. Initially, we'll start with certain features for GST compliances and then audit and compliances features from income tax audit. So we are going to cover how to file. Basically, how to file GSTR 1 3B is known to everyone because we are all using Tally software for all this. So there is a new feature for reconciliation of GSTR 2A with Tally, how to import that, how to compile GSTR 9 or 9C, or how to fetch data of GSTR 9 9C from Tally. We'll see that. Then certain checkpoints I'll introduce, showing checkpoints with expense ledger, certain classifications for debtors, creditors, and if during the year, if there is a change in rate of GST in particular stock item, how to go through it. So I'll show you certain features from Tally itself, and I'll again show you with PPT also. So starting with GST, we'll go to display, statutory report GST. We can see GSTR 1, 2, 3B, annual compilation, e-way bill, challan reconciliation, etc. from these features. We'll start up with GSTR 1. So this is the GSTR 1 compiled. Certain checkpoints we need to remember before filing this GSTR 1. There should be zero error in this field. There should be zero error in this incomplete HSN SSC information. There should be zero error in this incomplete mismatch information. You can see these errors are zero. If you find any sort of error, it will show you number 1 error, 2 errors, 3 errors. You need to sort these errors first, and then only we can go with filing the return. Now you can see B2B transactions, B2C transactions here in detail, everything. You can see HSN SSC history here, document issued, number of document issued from here itself. Now, what sort of errors we find in this incomplete HSN or this incomplete mismatch information in invoices? Suppose while passing the entries, what accountant do are, what they do is they manually put the figures of GST, CGST, SGST or IGST. Actually, Tally auto compile this information of GST, CGST, SGST and IGST. But accountants try to edit it manually. If they try to edit it manually, तो यहाँ पे error catch करेगा. Similarly, HSN, अगर HSN सेल में ट्रांसपोर्ट ऐड किया हुआ है, तो फिर ट्रांसपोर्ट में हम लोग HSN नहीं डालते, सेल का स्टॉक का HSN डाला हुआ है, तो वो भी यहाँ पे एरर पकड़ेगा. तो वो सब एरर हम लोग को अवॉइड करना है. सर्टेन एरर we'll discuss in further slides. Now, how to export this?
just need to export this. You can export this in Excel. You can export this in Excel. You can export this directly as a JSON file and upload it to GST portal. अगर आप Excel में export करेंगे तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा शीट. B2B transactions, B2C transactions, will be able to see this. Abhi usually what I have observed or what I have analyzed through various seminars and through talking to various CAs or articles of the CAs, what they do is वो लोग पोर्टल पे जाते हैं और एक एक एंट्री खुद करते हैं. पोर्टल पे जाते हैं और एक GST नंबर ऐड करते हैं GSTR1 में, और मतलब ऑलमोस्ट 100 to 200 बिल्स रहते हैं और 1-2 पर्सन ऑफिस में उसी के लिए रहता है जो सिर्फ GSTR1 का डेटा फिलअप करता है. सेकेंडली, या तो वो लोग कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जहां से डायरेक्ट हम लोग एक्सेल शीट इंपोर्ट कर सकते हैं. सबसे बेस्ट फीचर्स GSTR1 के लिए ऑफलाइन यूटिलिटी है. सो आई विल शो यू, जो यूजुअली लोग यूज नहीं करते हैं. What you need to do is, usually Tally की एक्सेल शीट ऑलमोस्ट सारे सॉफ्टवेयर में ऑपरेट करती है. यहाँ पे भी this is, I've already downloaded this offline tool of GST. You can download it through GST portal. यहाँ पे बस आपको जाके GST नंबर डालना है, ईयर सिलेक्ट करना है, मंथ सिलेक्ट करना है. If you will proceed, I can't proceed because there is no GST number here. If you will proceed, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट फाइल का. इंपोर्ट फाइल का आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा जहां से आप इंपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली एक्सेल शीट फ्रॉम टैली. आप जैसे ही इंपोर्ट करेंगे आपके सारे इनवॉइसेस GST नंबर के साथ यहाँ पे दिखेंगे, आपके क्रेडिट नोट्स दिखेंगे, B2B, B2C, एवरीथिंग. अगर कोई रेपिटेटिव इनवॉइस नंबर या कुछ जा रहा है तो यहाँ पे एरर रिफ्लेक्ट होगा. यू नीड टू रीचेक दैट. आप यहाँ से व्यू समरी कर सकते हैं जो आप टैली से फिगर GSTR1 से सेम टू सेम मैच कर सकते हैं. जो फिगर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये फिगर्स आप व्यू समरी में सेम टू सेम ऑफलाइन यूटिलिटी से मैच कर सकते हैं. अगर आपको ऑफलाइन यूटिलिटी नहीं यूज करनी है तो सीधा आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं जेसन फाइल में. जेसन फाइल आपके फोल्डर में सेव हो जाएगा और जेसन फाइल आप जाके सीधा पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं. तो बेसिक चेक पॉइंट फॉर दिस इज, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं होना चाहिए इनकम्प्लीट HSN SSE में और इनकम्प्लीट मिसमैच इंफॉर्मेशन में. So this was about GSTR1. Then we'll see GSTR3B. GSTR3B थोड़ा हेडेक हो गया है हम लोग के लिए because of GSTR2A reconciliation. Every month reconciliation और वो 10% variance and everything. So Tally came up with one amendment जहाँ पे आप लोग डायरेक्टली 2A का JSON डाउनलोड करके आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, जो आपका इनपुट सीधा पोर्टल के साथ डायरेक्ट मैच करेगा. जो अनरिकंसाइल अमाउंट है वो डायरेक्टली आपको रिफ्लेक्ट कर देगा कि आपके 2A में नहीं दिख रहा है, ये तो आपके बुक्स में एंट्री नहीं की हुई है. ठीक है. तो 3B भी अगर आप देखेंगे टैली में, तो दिस इज 3B. यहाँ पे भी आपको यही चेक पॉइंट रखना है कि आपको कोई यहाँ पे इनकम्प्लीट मिसमैच इंफॉर्मेशन नहीं देनी है. वो पहले रिजॉल्व करनी है और फिर देनी है. वो क्या मिसमैच रहेगा उसका एग्जांपल आपको आगे की स्लाइड्स में दिखेगा. एलिजिबल ITC, ये भी आपका सीधा एंट्री से फेच करेगा. अब आपको एलिजिबल ITC में भी यूजुअली आपको यहाँ पे इनपुट कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज का बाइफर्केशंस नहीं चाहिए. 9 में हमको चाहिए रहेगा. अब उसके लिए भी क्या चेक पॉइंट्स है, कैसे एंट्री पास करना है, वो हम लोग आगे की स्लाइड्स पे देखेंगे. We'll come to input. This is one of the error जो यूजुअली 3B फाइलिंग करने में या 1 फाइल करने में रिफ्लेक्ट करता है. ये एक सेल का वाउचर पास किया हुआ था जिसमें सेल का वैल्यू डाला हुआ था 5076.32, जिसमें 9% ऑलरेडी ऑटो पॉपुलेट होना चाहिए था CGST एंड 9% SGST. तो 456.84 के बदले मैन्युअली 457.87 डाल दिया है. तो 0.3 के डिफरेंस की वजह से भी वो एरर रिफ्लेक्ट करेगा और आपका रिटर्न में भी प्रॉपर्ली नहीं जाएगा.
So either you have to change this amount according to auto calculation, or either you just need to accept it. So we can accept this and move forward. So this was one sort of the error. Now, very important thing, we'll see how to reconcile our books GSTR2 with GSTR2A. So this feature has been added by Tally recently. अब जैसे आप ये भी देख सकते हैं 2 में भी कुछ ना कुछ एरर आता है, मे बी राउंडिंग ऑफ एरर है, या तो मे बी किसी का जीएसटी नंबर रॉन्ग डाला हुआ है, या तो कुछ प्रॉब्लम है, हमको पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जब तक आपका रिकंसाइल नहीं होगा, यहाँ पे आपको रिकंसिलिएशन स्टेटस नॉट कंप्लीटेड दिखेगा। नाउ देयर इज Alt L function load file. I'll show you how to load file in this. इनिशियली आपको जेसन फाइल आपका डाउनलोड करके रखना पड़ेगा पहले से ही, देन यू जस्ट नीड टू लोड फाइल। अब यहाँ पे मैंने पाथ दे के रखा है, मैंने जेसन फाइल डाउनलोड करके रखा था। नीड टू लोड फाइल, ये देखते हैं। अब एज पर बुक्स और एज पर पोर्टल, एज पर बुक्स हम लोग के पास 17 वाउचर्स है, 17 बिल्स है। पोर्टल पे हमारे पास 15 ही बिल्स हैं। जो ब्लू में दिख रहा है दैट हैज बीन कंप्लीटेड, वो रिकंसाइल्ड है। ये देखिए, these two transactions are available in book but not available at portal. These all transactions are available in book and available in portal. Further, this transaction, there are 4 transactions in books and only 3 transactions. No, there are 4 transactions at portal and 3 transactions as books. So if you will see further, तो कौन सा बिल आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा बिल मैच नहीं हुआ है। अभी जो ब्लू में भी दिख रहा है और ब्लैक में भी दिख रहा है, ये बुक्स में भी है और पोर्टल पे भी है, तो ये मैच्ड है। सेकंड बिल इज मैच, थर्ड बिल इज मैच, फोर्थ बिल इज मैच। अभी ये 6189 नंबर का इनवॉइस है जो मैच नहीं हो रहा है, तो हम लोग को इंक्वायर करना पड़ेगा ये क्यों मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर आपने आपकी क्लाइंट की डिटेल्स डाली होंगी तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ से कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेके फेच करके फॉलो अप कर सकते हैं। सिमिलरली अवेलेबल जो बुक्स में अवेलेबल है और पोर्टल पे नहीं दिख रहा है, आप यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट उसका डिटेल सेट कर सकते हैं और आप लोग डायरेक्टली यहाँ से मेल कम्युनिकेशन सेंड कर सकते हैं। तो दिस वाज द फीचर जहाँ पे हम लोग को यूजुअली ये यूजफुल हो जाएगा और हम लोग को लेबर वर्क थोड़ा कम हो जाएगा। अभी इसमें दूसरे मिसमैचेस के भी चांसेस है। सपोज फॉर एग्जांपल यही बिल नंबर ले लेते हैं, बिल नंबर 6189। अगर हम लोग ने बुक्स में 6189 डाला हुआ है और पोर्टल पे कोई सीरीज में डाला हुआ है 00 या तो /6189, तो भी ये मिसमैच आएगा। तो हम लोग यहाँ पे मैन्युअली भी एडजस्ट कर सकते हैं। हम लोग मैन्युअली भी यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर कोई क्लेरिकल एरर आया और यहाँ पे पोर्टल से ऑटो रिकंसाइल नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट करेंगे कि रिकंसाइल्ड है और हम लोग मूव फॉरवर्ड करेंगे। तो आपके जो रिकंसाइल दिखेंगे वो सारे कंप्लीटेड में दिखेंगे, बाकी ऑटोमेटिक अनरिकंसाइल्ड में दिखेंगे। अभी इसमें एक और ऐसा इशू है कि हम लोग को मंथली ही ये रिकंसाइल करना पड़ेगा। हम लोग एनुअल एक शीट इसका जनरेट नहीं कर सकते रिकंसिलिएशन के लिए, just because GST portal doesn't allow us 12 महीने का पूरा एक साथ जेसन डाउनलोड करने का। हम लोग को मंथली ही जेसन फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी और एवरी मंथ हम लोग को यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो हम लोग जब 3B फाइल करेंगे, अब ये एक और चेंज देगा कि आपको एग्जिट करना है विदाउट सेविंग, तो नहीं, आपको पहले सेव कर देना है, रिटर्न सेव। तो आपका रिकंसिलिएशन रहेगा। जैसे ही आप एवरी मंथ का रिकंसिलिएशन करेंगे, आपको मंथली रिकंसिलिएशन शीट मिलती जाएगी। तो आपको 12 मंथ का रिकंसिलिएशन करने में भी यहाँ से इश्यू नहीं आएगा। सो दिस इज द शॉर्टेस्ट वे of your reconciliation of 2A with books of accounts, but you have to make sure there should not be any error in this file. अब यहाँ पे HSN या HSC किसी का इनवैलिड आ गया है, यहाँ पे फिटबिट का HSN नहीं डाला हुआ था, तो ये एरर पकड़ेगा। ये HSN डालने के बाद ये एरर फ्री हो जाएगा और पूरा
कंपाइलेशन हम लोग को प्रॉपर्ली मिलेगा। Again come to our PPT. So basically GSTR1, yeah, I think we are well versed with GSTR1. There is no more features added for that. We can download it in Excel format, in JSON format, directly upload it through Tally, or we need to upload it through offline utility. Offline utility is the best utility. It is best than any of the software because I also use softwares for this. But offline utility से सबसे कम error में GSTR1 का filing होता है. Two-way reconciliation we saw. Two-way reconciliation में आप लोग को JSON फाइल पहले से डाउनलोड करके रखनी पड़ेगी. आपको फाइल लोड करनी पड़ेगी. जैसे ही आप फाइल लोड करेंगे आपको पाथ देना है वो फाइल का और आपका रिकंसिलिएशन हो जाएगा. आपको दिखेगा कंप्लीट और जो आपको ब्लैक में दिखेगा जो बुक्स में है उसमें नहीं है. यहाँ पे आप लोग आपके क्लाइंट्स के कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी डाल के रख सकते हो जिससे आप लोग डायरेक्टली उनसे कनेक्ट कर सकते हैं. अभी सर्टन चेक पॉइंट्स हम लोग एनुअल कंपाइलेशन लास्ट टाइम GSTR 9(9)C पे भी मेरे सेमिनार्स हुए थे और बहुत लोग को यही प्रॉब्लम था कि डेटा फेचिंग करने में उनके पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी. बट डायरेक्टली और इनडायरेक्ट वे में हम लोग को टैली ये सब में बहुत ज्यादा बेनिफिट करता है. एवरी फील्ड जैसे एक प्रॉब्लम सबको आ रहा था बाइफर्केशंस ऑफ ITC इनपुट कैपिटल गुड्स और सर्विसेज में, तो वो नहीं हो पा रहा था. तो कुछ सर्टन चेक पॉइंट्स हम लोग के क्लाइंट के अकाउंटेंट्स को या तो हमारे आर्टिकल्स को समझाने पड़ेंगे जिससे हम लोग को एवरी रेडी बाइफर्केशंस मिले. जैसे एक है कोई भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपको जाके पहले GST एप्लीकेबल यस करना है. फर्दर सेट अल्टर GST डिटेल्स में अगर आप यस करेंगे तो आप वो सर्विस का कितना परसेंट GST लगता है, सपोज 18% लगता है तो वो भी आप यहाँ पे प्री फीड करके रख सकते हैं. स्पेसिफिकली टाइप ऑफ सप्लाई में यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है सर्विसेज, तो ही आपका इनपुट सर्विसेज में रिफ्लेक्ट होगा एनुअल रिटर्न में, वरना इनपुट सर्विसेज में रिफ्लेक्ट नहीं होगा. आपको इनपुट के बाइफर्केशंस नहीं मिलेंगे. सेकेंड थिंग, अगर यहाँ पे आप एप्लीकेबल नहीं करेंगे और यहाँ पे सर्विसेज और GST रेट प्रॉपर नहीं डालेंगे तो आपको 3B में जो इनपुट फैच होता है उसमें भी आपको प्रॉब्लम आ सकता है. तो दिस इज दी चेक पॉइंट. आपको कोई भी लेजर में ये चेक करना पड़ेगा कि GST एप्लीकेबल किया है या नहीं और उसको वेल डिफाइन किया है या नहीं. सिमिलरली अगर आप डेटर या क्रेडिटर्स को चेक कर रहे हो तो डेटर क्रेडिटर में भी आपको प्रॉपर डिफाइन करना पड़ेगा उनका पैन नंबर, उनका GST नंबर और स्पेसिफिकली वो कौन से स्टेट में, स्टेट तो डालेंगे वो कौन सा रेगुलर है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, कंज्यूमर है, कंपोजिशन स्कीम है. अगर आप ये वेल डिफाइन प्रॉपर्ली करते हैं, अगर आप ये स्टेट सब प्रॉपर्ली डालते हैं तो आपके एरर के चांसेस GSTR 1 में, 3B में और एनुअल कंपाइलेशन में नेग्लिजिबल है. तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है. सिमिलरली अगर आप कोई फिक्स्ड एसेट परचेज कर रहे हैं तो आपको ऑप्शन मिलेगा कैपिटल गुड्स का, तो आपको उसको क्लासिफाई करना पड़ेगा कैपिटल गुड्स में, तो ही वो एनुअल कंपाइलेशन में कैपिटल गुड्स के हेड में दिखेगा. अब है डेटा फॉर GSTR एनुअल रिटर्न. अब हम लोग बेसिकली 9 और 9C यहाँ से तो प्रॉपर्ली फाइलिंग नहीं कर पाते हैं, बट हम लोग को पूरा डेटा टैली से मिल जाता है. हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली GSTR 1 से, 3B से और एनुअल कंप्यूटेशन से पूरा डेटा ले सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर इनके क्लासिफिकेशन, वाउचर क्लासिफिकेशन सब प्रॉपर्ली किए हुए हो, एरर फ्री किया हुआ हो, तो हम लोग को यहाँ से डेटा बहुत इजीली मिल जाएगा. Now we'll see GST annual computation. So this is GST annual computation. यहाँ पे भी errors है, you can see. HSN किसी के invalid है, incomplete mismatch information में, rate specify नहीं है कहीं पे, mismatch due to tax modification. यहाँ पे rounding of difference है 0.66, 0.33. या तो accept as it is करना है या तो हमको चेंज करना है. एक्सेप्ट एज इट इज हमने कर दिया, 0.33 डजंट इतना मैटर, तो यहाँ से वो एरर चला जाएगा.
बट HSN के बिना हम लोग आगे कोई डेटा फेच नहीं कर पाएंगे। HSN मैंडेटरी आपको डालने ही पड़ेंगे। Every bifurcation you will be able to fetch from here. B2C के आपको separate transactions मिल जाएंगे, B2B के आपको separate transactions मिल जाएंगे, लेस क्रेडिट नोट डेबिट नोट की कोई इफेक्ट है तो वो भी आपको मिल जाएंगे। अगर आपने प्रॉपर एक्सपोर्ट SEZ सेल बाइफरकेट करके रखा है तो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो यूजुअली हम लोग के क्लाइंट्स मिस्टेक करते हैं, या तो हमारे आर्टिकल्स नहीं देखते हैं। बाइफरकेशन ऑफ इनपुट, कैपिटल गुड एंड सर्विसेज। एज आई टोल्ड, अगर आपने प्रॉपरली वाउचर्स में उसका क्लासिफिकेशन किया है, प्रॉपरली सर्विसेज में डाला हुआ है तो प्रॉपरली सर्विस में ही जाएगा। आपने उसको प्रॉपर्टी कैपिटल गुड्स में डाला हुआ है, जैसे ये एक वाउचर है फिक्स्ड एसेट का, फिक्स्ड एसेट परचेज किया था, एयर कंडीशन परचेज किया था, इसका क्लासिफिकेशन हम लोग ने प्रॉपरली डाला है कैपिटल गुड्स में। ये देखिए, इसका नेचर ऑफ गुड्स हम लोग ने प्रॉपरली सिलेक्ट किया हुआ है कैपिटल गुड्स। इसमें HSN हम लोग ने प्रॉपर डाला हुआ है। ये कैपिटल गुड्स में अगर आपने प्रॉपर क्लासिफिकेशन किया हुआ होगा तो ही आपका बाइफरकेशन स्पेसिफिकली कैपिटल गुड्स में दिखेगा, वरना फिर कैपिटल गुड्स में आपको नहीं दिखेगा। आपको एवरी ऑप्शन में कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन रहता है F12। F12 में आपको अलाउ HSN डिटेल्स आपको यस करना है तो आपको HSN भी उसका दिख जाएगा। सेट टाइप ऑफ गुड जो हम लोग ने ऑलरेडी डाल के रखा है कैपिटल गुड्स। और इम्पोर्टेंट थिंग इज सेट इन एलिजिबल इनपुट क्रेडिट। अब कुछ कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है जिसका हम लोग को क्रेडिट नहीं लेना है, तो हम लोग अगर यहाँ पे यस कर देंगे तो हम लोग को एनुअल रिटर्न में इन एलिजिबल क्रेडिट में ये शो करेगा। सपोज हम लोग फिक्स्ड एसेट्स के एयर कंडीशन का जितना GST हम लोग सब कॉस्ट में लेके उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं, अगर हम लोग उसको कैपिटलाइज करके डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं तो हम लोग इनपुट क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमको इनएलिजिबल क्रेडिट में यस कर देना पड़ेगा। अगर हम लोग ओनली उसका बेसिक वैल्यू कैपिटलाइज कर रहे हैं और इनपुट क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको नो करके कंसिडर करना पड़ेगा। तो दिस वाज द इम्पोर्टेंट थिंग, क्लासिफिकेशन हर एक चीज का। अगर आपका कैपिटल एसेट है तो आपको ऐसे जाके कैपिटल एसेट में चेक करना पड़ेगा कि उसको कैपिटल गुड्स में GST में क्लासिफिकेशन दिया हुआ है या नहीं। अगर नहीं दिया हुआ होगा तो आपका एनुअल रिटर्न में वो शो नहीं करेगा। देन आपको जाके फिक्स्ड एसेट के शेड्यूल देके एक शेड्यूल में से लेना पड़ेगा कि ड्यूरिंग द ईयर एडिशन कौन सा हुआ है। सिमिलरली अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो आपको सर्विसेज में क्लासिफाई करनी पड़ेगी। अब हम CS को ऑब्वियसली क्रॉस वेरिफिकेशन, डबल वेरिफिकेशन का हैबिट रहता है, तो हम लोग टैली से ही ये डेटा वापस क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि कुछ मिस्टेक तो नहीं है। डबल वेरीफाई करेंगे, कैसे कर सकते हैं? हम लोग को एनुअल समरी मिल सकती है GSTR 1 से। GSTR 1 में अगर हम लोग जाते हैं, कॉन्फ़िगर करके हम लोग सेपरेट टैक्स शो करने का अलाउ फीचर करेंगे तो आपको ऐसी सारी डिटेल्स मिलेगी। सेल आपको रेट वाइज मिल जाएगा, CGST, SGST, IGST सेपरेट मिलेगा। आप ये क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं एनुअल रिटर्न के साथ। आपको यहाँ पे अगर कोई सेल्स रिटर्न या कुछ है तो वो भी डिटेल आपको यहाँ से माइनस मिलेगी, वो भी आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं एनुअल कंपाइलेशन के साथ। सेकेंड थिंग, आप लोग 3B में से भी इंफॉर्मेशन फेच कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 3B में भी आपको यही रेट वाइज डिटेल मिलेगी, यही बाइफरकेशन मिलेगा IGST, CGST, SGST का। हमको एनुअल रिटर्न्स में लगता है ये डिटेल्स, रेट वाइज सेल्स, रेट वाइज परचेजेस लगते हैं, तो हमको 3B में से रेट वाइज सेल भी मिल जाएगा, रेट वाइज परचेज भी मिल जाएगा। ये परचेज का बाइफरकेशन है 5%, 12% का, ये बाइफरकेशन भी मिल गया। एक फीचर है आपको करना है कॉन्फ़िगर, F12। कॉन्फ़िगर में शो ब्रेकअप ऑफ नेट वैल्यू को आपको यस कर देना है, तो आपको ये पूरी डिटेल फेच करने में इजी हो जाएगा। आई विल शो यू।
we'll go to configure. ये जो है show tax type in separate column, अगर मैं इसको no करती हूँ तो मुझे ऐसा डिटेल मिलेगा, मुझे टैक्स सेपरेटली नहीं मिलेगा। एनुअल कंपाइलेशन के लिए आपको ये पूरा डिटेल सेपरेटली मिल जाता है, 1 में भी, एनुअल कंपाइलेशंस में भी और 3B में भी। सिमिलरली कुछ और ऐसे फीचर्स हैं जहां से हम लोग डायरेक्टली फेच कर सकते हैं इंफॉर्मेशन, जैसे हम लोग सेल रजिस्टर में जाके सीधा CGST SGST के रेट वाइज टैक्सेस फेच कर सकते हैं। आई विल शो यू हाउ। वील गो टू डिस्प्ले, अकाउंट बुक, सेल रजिस्टर, सपोज मार्च मंथ सेल, वील एक्सट्रैक्ट, वील एक्सट्रैक्ट, इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपको ये डिटेल में टैक्सेस मिल जाएंगे। आप यहाँ से भी रीचेक कर सकते हैं वापस रेट वाइज टैक्सेस। सिमिलरली अगर आप परचेज रजिस्टर में जाते हैं, परचेज रजिस्टर में भी F6 एक्सट्रैक्ट, अगर आप एक्सट्रैक्ट करते हैं तो आपको यहाँ से भी डिटेल्स मिल जाएगी रेट वाइज। तो दिस इज दी ऑल्सो वे ऑफ क्रॉस वेरिफिकेशन। आप एनुअल कंपाइलेशन चेक करिए, आप उसको GSTR 1 से कंपेयर करो, GSTR 3B से कंपेयर करो। अगर कहीं भी तीनों रिटर्न में आपका कहीं भी एरर कोई भी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा तो वो एरर का एंट्री मे बी वो लोग ने एनुअल कंपाइलेशन में कंसिडर नहीं किया होगा। So it is necessary to check annual GSTR 1, annual GSTR 3B along with annual compilation for GSTR 9 and 9C. अब एक और कंफ्यूजन और क्वेरीज मेरे पास बहुत बार आती है, अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई स्टॉक आइटम का रेट चेंज हो जाता है तो यूजुअली व्हाट दे डू इज, यूजुअली मैंने देखा है क्लाइंट्स के अकाउंटेंट क्या करते हैं, जैसे ये मोबाइल है तो अगर मोबाइल का रेट चेंज हो गया GST रेट, तो वो लोग क्या करते हैं, न्यू स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं, मोबाइल 1 फिर चेंज हो गया, फिर मोबाइल 2 फिर चेंज हो गया, फिर मोबाइल 3। वो रॉन्ग वे है। आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन, स्टॉक आइटम। सपोज आपका मोबाइल का रेट चेंज हो गया ड्यूरिंग द ईयर, सपोज अप्रैल मई और जून में आपका रेट 18% था, जुलाई से आपका रेट 12% हो गया है, फिर से आपका रेट 18% हो गया है, तो आप कैसे चेंज करेंगे? सेट अल्टर GST में आपको यस करना है वापस। अभी आपको दिख रहा है मोबाइल का रेट इज 18%, नाउ आई नीड टू डू इट एज 12%। अब मैंने ये 12% कर दिया। If I try to accept this, they'll ask me कि कौन सा revised मतलब कौन से डेट की रिविजन एप्लीकेबल है। So I'll set this date as 1st March 2020. देखिए 1st मार्च को डेट अलग था, रेट अलग था, 22 नवंबर को फिर से रेट चेंज हो गया, 1st मार्च को फिर से रेट चेंज हो गया। So the correct way to change the rate is usually what they do is mobile 1, mobile 2, mobile 3, mobile 4 ऐसे create करके रख देते हैं just because उनको ये फीचर पता नहीं रहता है। अगर during the year कोई भी स्टॉक का रेट चेंज होता है तो this is the only way। ये आपको पाथ के साथ ये PPT I'll request कि रीड सर टू अपलोड इट एट नागपुर ब्रांच साइट, सो आपको ये सब फीचर्स वहां से रेडी मिल जाए। आपको ये दिखना जरूरी है कब कब रेट चेंज हुआ है। अगर ये भी आपने प्रॉपर्ली नहीं डाला है तो आपका एनुअल कंपाइलेशन में रादर आपके टैक्स ऑडिट में भी प्रॉब्लम आ सकता है। अब HSN में कॉमन एरर एक यूजुअली जो सर्च किया था होता ही है, जैसे अभी प्लास्टिक कंटेनर परचेज किया था 73,600 में, उस पे ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस लगे हैं 3,500 में। अब 18% GST उस पे लगा है टोटल पे 73,600 प्लस 3,500। अभी जब एंट्री पास करते हैं तब प्लास्टिक कंटेनर्स का तो उनने HSN डाला हुआ है, अब ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस पे भी तो HSN होगा, वो उसने नहीं डाला था, तो हम लोग को ये एरर रिफ्लेक्ट हो गया कि HSN आपका इनकम्प्लीट है।
तो प्लास्टिक कंटेनर का 3923 डाला हुआ था, ट्रांसपोर्टेशन का हम लोग को सर्विसेज का फाइंड करके यहाँ पे HSN पुट करना पड़ेगा, तो ही ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा। तो दिस इज द कॉमन एरर जो HSN में मिलता है, या तो HSN आपका इनकरेक्ट रहता है, या तो फिर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जो आपने सेल में ऐड किया हो या तो परचेज में ऐड किया हो, उसका HSN डालना छूट जाता है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस में अगर HSN डालेंगे तो वो एरर सॉर्ट हो जाएगा। तो दिस वाज अबाउट GST। GST में और काफी फीचर्स है जो हम लोग इंटरनली चेक कर सकते हैं। आपको हर एक रिटर्न में एक्सेप्ट, रिजेक्शन, ये सबका ऑप्शन मिलेगा। अभी यूजुअली हम लोग के पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि हम लोग एक एक ट्रांजैक्शन जाके देखें। अभी ये डेमो डेटा है, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन का लिस्ट बहुत कम है। पॉसिबली हर महीने में 100-150 ट्रांजैक्शन कंपनी के होते हैं, तो हम लोग एक एक एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। बट स्टिल अगर इफ यू आर विलिंग टू डू इट, अगर छोटे मोटे ट्रांजैक्शन है और हम लोग कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को एक्सेप्ट एज अ वैलिड का ऑप्शन रहता है। हम लोग उसको जाके वैलिड कर सकते हैं, जितना चेक हुआ है वो हम लोग जाके वैलिड कर सकते हैं। बाकी इससे कनेक्टेड फीचर्स हम लोग को ऑडिट एंड कंप्लायंसेस के पोर्टल यहाँ पे भी मिलेंगे, पोर्टल में, जहाँ हम लोग टैक्स ऑडिट में देखेंगे कैसे करना है। एक एक चीज हम लोग वाउच कैसे कर सकते हैं, हम लोग टैली में मैच कैसे कर सकते हैं, वो भी देखिएगा। अभी यूजुअली टैक्स ऑडिट में हम लोग को ये ऑडिट एंड कंप्लायंसेस का पोर्टल एक्टिवेट करना पड़ता है। अगर हम ये एक्टिवेट नहीं करते हैं तो हम लोग ऑडिट नहीं कर सकते हैं, हम लोग को ये फीचर एक्टिवेटेड नहीं मिलेगा। अब इसके टैली के पहले के फीचर्स में अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे ऑडिट कंप्लायंस के साथ आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भी दिखता था। आप इसमें टैक्स ऑडिट रिपोर्ट पूरा का पूरा बना सकते थे, बट अभी वो टैक्स ऑडिट का फीचर वो लोग ने 3CA, 3CB, 3CD डिसकंटिन्यू किया है। अब ओनली ऑडिट कंप्लायंसेस का आपको एक फीचर दिया गया है। आपको GST से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक डाउट्स हो या कुछ हो तो आप लोग डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। ये कुछ फीचर्स आई ट्राई टू कवर, जहां मुझे यूजुअली कोई सेमिनार्स में क्वेरी आती है या तो फिर पीपल फेस डे टू डे में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है, तो फिर वही टॉपिक्स यूजुअली कवर किए हैं। अब टैली में इनकम टैक्स ऑडिट टैली के लिए बेस्ट है। अगर हम लोग इसमें देखा जाए तो ये फीचर ऑडिट एंड कंप्लायंसेस फीचर यूजुअली लोग यूज नहीं करते हैं, बट देखा जाए तो हम लोग हमारा वर्किंग पेपर भी वहीं से मेंटेन कर सकते हैं। हम लोग हमारा पूरा ऑडिट का फीचर पूरा ऑडिट वहीं से कंडक्ट कर सकते हैं, पूरा वहीं पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब एज सर सेड, ड्यू टू दिस लॉकडाउन हम लोग ऑडिट प्लेस पे नहीं जा सकते, हम लोग एक एक फिजिकल पेपर मेंटेन नहीं कर सकते। एंड टैली इज ऑब्वियसली गिविंग द फैसिलिटी ऑफ क्लाउड टैली, जो जल्दी ही ऑपरेशन में आ जाएगा। उसके सेफ्टी रूल्स और क्या है सब बाहर आ जाएंगे। अगर क्लाउड पे आ जाता है तो कौन सा हम लोग ऑडिट का वर्क, वाउचिंग, सपोज वाउचिंग हम लोग किसको दे रहे हैं, फिक्स्ड एसेट का हम लोग वेरिफिकेशन किसको दे रहे हैं, हम लोग नाम के साथ वो एक एक चीज लिस्ट कर सकते हैं, एक एक पर्सन लिस्ट कर सकते हैं कि कौन किसकी ड्यूटी क्या है, कितने दिन के टारगेट्स है वो भी हम दे सकते हैं, फॉलोअप्स ले सकते हैं, ऑडिट प्रोग्राम बना सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल थ्रू दैट फंक्शन। अब हम लोग इसमें कुछ कुछ फंक्शन कंसिडर करेंगे, जैसे कैश एक्सपेंसेस एक्सीडिंग 10,000 हम लोग कैसे इजी वे में चेक कर सकते हैं। सॉर्टिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग अमाउंट्स इन एनी लेजर। अब यूजुअली हम लोग जो बड़े बड़े अमाउंट्स है वो चेक करते हैं, या तो रैंडम सैम्पलिंग चेक करते हैं, तो वो कैसे हम लोग कर सकते हैं। नेगेटिव लेजर्स हम लोग को फोकस करना पड़ता है, वो कैसे चेक कर सकते हैं। नेगेटिव स्टॉक्स, फिर डेटर ओवरड्यू, अगर डेटर बहुत ज्यादा दिन तक है, डेटर क्रेडिटर, तो वो हम लोग चेक कर सकते हैं। कुछ ऑडिट हम लोग स्पेसिफिक हम लोग को रिपोर्ट्स मिल सकती है स्टॉक से रिलेटेड, स्टॉक मूवमेंट एनालिसिस है, स्टॉक जर्नल है। स्टॉक जर्नल ऐसा पार्ट है कि जहाँ पे यूजुअली स्टॉक एडजस्टमेंट कुछ ना कुछ हो सकती है, तो हम लोग को वो चेक करना बहुत जरूरी है। जर्नल्स और डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये भी डेबिट नोट क्रेडिट नोट का ऐसा एरिया कि यूजुअली अकाउंटेंट्स कंफ्यूज होते हैं और इसमें मिस्टेक होता ही है।
तो ऐसे कौन से चेक पॉइंट्स है या ऐसे कौन से टैली के फीचर्स है जो हम लोग इजीली जिससे ये सब फेच कर सकते हैं। अब फर्स्ट थिंग है कैश एक्सपेंसेस एक्सीडिंग 10,000। अब हम ये कैसे कर सकते हैं, एक इसमें फीचर है जो यूजुअली आप यूज करते होंगे, मैं एक और बार आपको बता देती हूँ, ये हम लोग सारे लेजर में यूज कर सकते हैं। लेजर, सपोज मैं कैश लेजर ओपन कर रही हूँ, ये मैंने कैश लेजर ओपन किया, अब इसमें पेमेंट कॉन्ट्रा सब कुछ आ गया। इफ आई कॉन्फ़िगर दिस बाय F12, मेरे पास सॉर्टिंग का मेथड अवेलेबल हो जाता है। अगर मैं सॉर्टिंग, मुझे चाहिए कि मैं अमाउंट वाइज सॉर्टिंग करूं, मुझे बड़े बड़े अमाउंट से ही मतलब है, मुझे छोटे छोटे अमाउंट से कोई मतलब ही नहीं है, तो मैं अमाउंट डिक्रीजिंग डालूंगी, तो सबसे बड़े अमाउंट ऊपर आ गए। अब मुझे ये कॉन्ट्रा एंट्री से कोई मतलब ही नहीं है, मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि कोई ऐसे पेमेंट्स है जो 10,000 के ऊपर जा रहे हैं, तो मुझे क्या करना है, मुझे रेंज ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब ये मैं कोई भी चीज के लिए कर सकती हूँ, अगर ये छोटा लेजर है, अगर कोई बड़ा लेजर है, तो मैं आराम से इसको सॉर्ट कर सकती हूँ। वाउचर, वाउचर टाइप, नेम, कंटेनिंग पेमेंट, ये देखिए कॉन्ट्रा और बाकी सब ट्रांजैक्शन चलेगा और ओनली पेमेंट दिख रहा है। अब उसमें भी सबसे हाईएस्ट अमाउंट इज 19,000 व्हिच इज वायलेटिंग आवर प्रिंसिपल ऑफ 10,000, सो आई नीड टू रिपोर्ट दिस ट्रांजैक्शन। दो फंक्शन आपको यहाँ पे सारे लेजर में काम आएंगे। एज हम लोग हमेशा अमाउंट पे या कोई पर्टिकुलर पार्टी पे फोकस करते हैं, अगर हम अमाउंट पे फोकस करते हैं तो हम लोग को ये सॉर्टिंग मेथड देखना है। आपको बहुत सारे वे, अगर आपको अल्फाबेटिकली सॉर्ट करना है, अमाउंट वाइज सॉर्ट करना है, या तो डिफॉल्ट रखना है, ये आप पे ऑप्शन है। बट व्हाट यूजुअली आई सॉ पीपल यूजिंग एंड आई यूज इज अमाउंट। जो हाईएस्ट अमाउंट है मुझे उससे लेना देना है, जो छोटे छोटे अमाउंट है वो मैं वैसे ही डिस्कार्ड कर देती हूँ। तो इससे मुझे इजी वे में मिल गया, ये मैं कहीं पे भी यूज कर सकती हूँ। सपोज ये एक पार्टी है, अब मुझे देखना है कि ये पार्टी का सबसे हाईएस्ट ट्रांजैक्शन कौन सा हुआ है, कब हुआ है, मैं वही चेक करूंगी। सो आई नीड टू कॉन्फ़िगर, I need to sort this with highest amount। सबसे हाईएस्ट अमाउंट का सेल आ गया, मेरा रिसीट आ गया। अगर अब मुझे सिर्फ सेल देखना है तो मैं रेंज से वाउचर में वाउचर टाइप नेम सिलेक्ट करके सेल करूंगी, तो मुझे इसमें ओनली सेल की एंट्रीज दिखेगी। ओनली रिसीट चेक करना है तो ओनली रिसीट की एंट्री दिखेगी। ये मैं पूरे टैली में कोई भी लेजर के लिए यूज कर सकती हूँ। रादर ये मैं ट्रायल बैलेंस पे भी यूज कर सकती हूँ। डिस्प्ले, अगर आपको पूरा ट्रायल बैलेंस देखना है, अगर आपको सिर्फ बड़े बड़े अमाउंट देखना है तो इसमें भी फीचर है। पहले तो F12 करना है, ओपनिंग बैलेंसेस भी मुझे देखना है, ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शंस भी देखना है। इसमें भी सॉर्टिंग मेथड, मुझे अमाउंट ज्यादा चाहिए, ये अमाउंट, जो अमाउंट ज्यादा है वो लेजर ऊपर आ जाएंगे, बाकी नीचे। अब ये कंपनी डेमो कंपनी अभी फॉर्म हुई है, तो फिर इसमें ओपनिंग बैलेंसेस नहीं मिलेंगे, वरना आप लोग डिटेल में या तो कंसोलिडेटेड वे में ये भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। So this was the basic thing. I think everybody used this. अब another एक फीचर है नेगेटिव स्टॉक नेगेटिव लेजर का, एक्सेप्शन रिपोर्ट। अब यूजुअली हम लोग ऑडिट में ये भी चेक करते ही हैं, मतलब कोई नहीं छोड़ता है। कैसे चेक करेंगे, डिस्प्ले, डिस्प्ले में एक्सेप्शन रिपोर्ट। एक्सेप्शन रिपोर्ट में आपको नेगेटिव स्टॉक पूरा मिल जाएगा। दिस इज द बिगेस्ट रिस्क हम लोग के ऑडिट में। स्टॉक नेगेटिव कैसे हो सकता है, अगर आपने बाय ही नहीं किया है तो आपने बेचा कैसे। अब इसमें भी आपके पास ऑप्शन है, ओपनिंग स्टॉक, इनवर्ड्स देख सकते हैं, आउटवर्ड्स देख सकते हैं, क्लोजिंग, सब कुछ देख सकते हैं। इसमें भी आप सॉर्टिंग कर सकते हैं, आपको जैसे वे में, आपको क्वांटिटी बेसिस पे सॉर्टिंग करना है, आपको अमाउंट बेसिस पे सॉर्टिंग करना है। ये देखिए ओपनिंग 43 पीसेस वो लोग ने खरीदे थे, 50 बेचे थे, 7 नेगेटिव। दिस इज नॉट पॉसिबल। एक डेमो स्टॉक हमने क्रिएट करके रखा जो सीधा बेच दिया, दिस इज रॉन्ग। तो हम लोग को उनको पूछना पड़ेगा कि ये क्यों हुआ है। ये डायरेक्टली हम लोग लेजर उनको सेंड करते हैं, वो लोग को सॉर्ट करके हमको देना पड़ता है। यहाँ पे भी हम लोग रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको जैसे सॉर्टिंग करना है स्टॉक आइटम का, आपको सिर्फ एप्पल यूएसबी का देखना है या एप्पल यूएसबी टाइप का देखना है, तो आप रेंज से वो सिलेक्ट कर सकते हैं।
कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जिससे आपको पूरा उसका मूवमेंट दिखेगा, ओपनिंग बैलेंस, इनवर्ड, आउटवर्ड, क्लोजिंग बैलेंस. So this is the red alert area, contaminated zone of a tax audit. Another area is negative ledger. नेगेटिव लेजर भी आपको चेक करने पड़ेंगे. अगर डेटर है तो क्रेडिट बैलेंस कैसे है, अगर क्रेडिटर है तो डेबिट बैलेंस कैसे है, कैश नेगेटिव क्यों है, बैंक नेगेटिव क्यों है, कोई एंट्रीज गलत पास की हुई है क्या. इसमें भी कॉन्फ़िगर ऑप्शन आपके पास है जिसमें आप ओपनिंग बैलेंस, ड्यूरिंग द योर ट्रांजैक्शन, सॉर्टिंग सब कर सकते हैं. अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन कम है इसलिए आपको सीरियसनेस में भी नहीं समझ रहा है, बट जहाँ पे ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा रहते हैं और हम लोग को पूरा चेक करने का टाइम नहीं है, हम लोग मेजर अमाउंट ही चेक करते हैं, तो दिस इज दी वे हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं हाईएस्ट अमाउंट से. So we saw negative stock, negative ledger. अब है डेटर्स ओवरड्यू. अब डेटर्स ओवरड्यू भी बैंक्स हम लोग को पीरियोडिकली, ऑब्वियसली उनका जब वर्किंग कैपिटल सैंक्शन करना है तब स्टॉक का और डेटर्स का डिटेल मांगते ही है. हम लोग को हमारे ऑडिट रिपोर्ट में भी प्रॉपर डेट में डेटर्स का बाइफर्केशन देना पड़ता है, तो आप लोग डेटर की एजिंग चेक कर सकते हैं. सिमिलरली एक्सेप्शन रिपोर्ट में overdue receivable में I'll show you. This is overdue receivable. यहाँ पे एक ऑप्शन है एज वाइज F6. You can see this option. एज वाइज में आपको बिल डेट वाइज करना है. आप डेज ले सकते हैं, आपको 0 to 90 डेज में करना है, 90 to 180 डेज. ये तो मैंने फीड करके रखे ऑलरेडी. अगर आपको कोई स्पेसिफिक डेज के बाइफर्केशंस डालने हैं तो आप स्पेसिफिक डेज के बाइफर्केशंस डाल के एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो आपको डेज वाइज मिल जाएंगे. Less than 90 days, 90 to 180 days, 180 days to 365 days. अब यूजुअली इसमें भी एरर आने के चांसेस बहुत ज्यादा है. इन केस अगर अकाउंटेंट बिल टू बिल पेमेंट की एंट्रीज पास नहीं कर रहे हैं, ऑन अकाउंट एंट्रीज पास कर दे रहे हैं, तो वो इनवॉइस के अगेंस्ट वो पेमेंट अभी भी पेंडिंग दिखेगा. अगर वो पेमेंट पेंडिंग दिखेगा तो यहाँ पे वो एक्सीडिंग डेज में दिखाएगा, तो वो क्लैरिटी हमको अकाउंटेंट से लेनी पड़ेगी, या तो उनको बोलना पड़ेगा भाई ऑन अकाउंट पास मत कर और बिल टू बिल मैच करके दे, तो ये हमको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से प्रॉपरली मिल पाएगी. यहाँ पे भी हम F12 करके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. कॉन्फ़िगर में यहाँ पे भी हम सॉर्ट कर सकते हैं. हम लोग को कैसे सॉर्ट करना है, अमाउंट के बेसिस पे सॉर्ट करना है, डेट के बेसिस पे सॉर्ट करना है, ड्यू डेट के बेसिस पे सॉर्ट करना है, या तो कोई स्पेसिफिक रेफरेंस नंबर के बेसिस पे सॉर्ट करना है, वैसे आप सॉर्ट कर सकते हैं. अब इसमें भी मुझे अमाउंट देखना है कि कौन सा अमाउंट सबसे हाईएस्ट है, तो वो अमाउंट के बेसिस पे मैं सॉर्टिंग लूंगी. आपको प्रेफरेबली अगर डेट या डेट के बेसिस पे सॉर्टिंग लेना है तो आप वैसे सॉर्टिंग ले सकते हैं. ये भी हम लोग को ऑडिट रिपोर्ट में डायरेक्ट इंफॉर्मेशन जाती है. ये फीचर यूज करना है एज वाइज. एज वाइज में ड्यू डेट्स अगर आपने यहाँ पे स्पेसिफिकली डाल के रखी है पेमेंट की, तो ड्यू डेट्स वाइज कर सकते हैं, वरना बिल वाइज आप ये चेंज कर सकते हैं. So this is very nice feature which is very much useful while conducting the audit. Another feature, stock movement. अगर कोई स्पेसिफिक बिजनेसेस है, जैसे केमिकल का बिजनेस है या तो टेक्सटाइल का बिजनेस है जहाँ पे वेस्टेज बहुत ज्यादा होते हैं, या तो स्पेसिफिकली अगर कोई कपड़े बना रहे हैं, सपोज बुटीक बिजनेस है, कितना क्या मटेरियल लग रहा है और उससे क्या फिनिश प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, या तो सेकंड थिंग इज कि हम लोग कौन से सप्लायर से गुड्स बाय कर रहे हैं और कहाँ पे सेल कर रहे हैं, ये अगर हमको देखना है तो वो हम लोग देख सकते हैं फीचर के थ्रू मूवमेंट एनालिसिस. मूवमेंट एनालिसिस से हम लोग को पता चलेगा कि कौन सा स्टॉक का मूवमेंट, मतलब कौन सा स्टॉक हम लोग कहाँ से कितने में बाय कर रहे हैं और हम लोग कहाँ पे सेल कर रहे हैं. अब ये स्पेसिफिकली हम लोग जहाँ पे नेगेटिव स्टॉक आ रहा है वहां पे वो फील्ड में भी ये चेकिंग रख सकते हैं. अभी हम लोग कैसे चेकिंग करेंगे, सिमिलर वे, डिस्प्ले, इन्वेंट्री बुक्स, मूवमेंट एनालिसिस. ग्रुप वाइज भी आप कर सकते हो, पर्टिकुलर आइटम वाइज भी आप कर सकते हो, या आपको मूवमेंट एनालिसिस, सपोज मुझे आईफोन लाइटनिंग केबल का मूवमेंट चाहिए इसमें, सपोज
ये सप्लायर से हमने बाय किए थे 117 पीसेस, उसने ये रेट में बाय किए थे, टोटल वैल्यू दिख गई है। और ये कहाँ पे सप्लाई हुआ, कहाँ से बाय किया, कहाँ पे गया, ये मिल सकता है। इसमें भी आपको कॉन्फ़िगर का ऑप्शन है। अगर जॉब वर्क आप करते हैं तो आपको ये ऑप्शन इनेबल करना पड़ेगा। अब ये जॉब वर्क नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग है, तो आपको ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा। कंजम्पशन है तो यहाँ पे प्रॉपर कंजम्पशन दिखेंगे, यूनिट्स दिखेंगे। सिमिलरली हम लोग कोई भी प्रोडक्ट देख सकते हैं कि उसका मूवमेंट कैसा जा रहा है, हम लोग बाइंग कहाँ से कर रहे हैं और हम लोग सेल कहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे भी हमारे पास सॉर्टिंग मेथड और कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे भी हम इनवर्ड आउटवर्ड सब कुछ इनेबल करके डिटेल में चेक कर सकते हैं। अगर आपको स्पेसिफिक आइटम का ही देखना है, अगर आपको ग्रुप का नहीं देखना है, तो मैं स्पेसिफिक आइटम पे भी जाके देख सकती हूँ, वही आपको डिटेल मिलेगा। अगर आपको लगता है कि कोई स्पेसिफिक गुड्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली जाके चेक कर सकते हैं उसका मूवमेंट एनालिसिस। यूजुअली हम लोग कब यूज करते हैं, अब लास्ट ऑडिट रिपोर्ट में देखा था, तभी भी हमने देखा था कि क्लोजिंग स्टॉक वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। अभी ये साल के एंड में भी ऑडिट जब हम लोग करने गए, तब हम लोग को बुक्स में दिख रहा है कि जो लास्ट ईयर का स्टॉक है वो अभी भी अनटच पड़ा है। तो हम लोग उसका मूवमेंट एनालिसिस करेंगे कि ये क्यों अभी तक यूज नहीं हुआ है। अगर मूवमेंट एनालिसिस में नहीं दिख रहा है, एक्चुअली स्टॉक बुक्स में दिख रहा है, तो एक्चुअली क्या फिजिकली वो स्टॉक रखा हुआ है या नहीं, वो हम लोग प्रॉपरली चेक करेंगे। तो ये मूवमेंट एनालिसिस का फीचर बहुत अच्छे से हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। इसमें एक और फीचर है स्टॉक ट्रांसफर का। अगर आपने स्टॉक की जेवी पास की होंगी, यूजुअली ये एडजस्टमेंट्स लोग करते हैं प्रोडक्शन के केस में, टेक्सटाइल के केस में। सपोज हम लोग ये देखें एग्जांपल गिफ्ट बास्केट। अब ये केस में क्या हुआ था, ड्राई फ्रूट्स बाय किए थे 12% पे, 5% पे, और ड्राई फ्रूट्स आप देख सकते हैं केजीज में बाय किए थे। अब ये ड्राई फ्रूट्स का स्टॉक तो नील हो गया, ये गया कहाँ पे, अगर आप डेस्टिनेशन देखेंगे तो इसने क्या किया था, गिफ्ट बास्केट बना दिया। इसकी गिफ्ट बास्केट उसने पीसेस में बेची है। तो यहाँ पे हमको उनसे पूछना पड़ेगा, ये तो एक छोटा सा ट्रांजेक्शन दिख रहा है यहाँ पे, और बड़े बड़े ट्रांजेक्शन भी हो सकते हैं। तो ये हमको उनको पूछना पड़ेगा कि ऐसे जेवी उसने क्यों मारी है, इसका कोई प्रूफ है कि आपने कौन से बेसिस पे, कौन से केजीज में हर एक गिफ्ट बास्केट बनाई है, कितनी गिफ्ट बास्केट। अब यहाँ पे 190 पीसेस गिफ्ट बास्केट दिख रही है, तो इसके बाइफिकेशन उसने कैसे किए, ये हम लोग को थोड़ा रैंडम चेकिंग करना पड़ेगा। अब यूजुअली हम लोग ऑडिट में ये स्टॉक ट्रांसफर देखते ही हैं। अब यहाँ पे भी आप एग्जांपल देख सकते हैं, जेवी मारा हुआ है, यहाँ पे भी उन्होंने गिफ्ट बास्केट वैसे ही बना के सेल की हुई है। तो हम लोग को उनको पूछना पड़ेगा कि व्हाट इज द रीजन, आपने ऐसे क्यों किया, और व्हाट इज द बाइफिकेशन, प्रॉपर बाइफिकेशन में क्या है। अब यूजुअली आप केमिकल इंडस्ट्रीज में भी देखेंगे कि उनका मे बी उनका वेस्टेज बहुत ज्यादा रहता है, या कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री वेस्ट बहुत ज्यादा रहता है। अब वो लोग ने उनका वेस्ट का ट्रीटमेंट कैसे किया है, बुकिंग कैसे किया है, वो हम लोग चेक कर सकते हैं इसके थ्रू। तो बेसिकली मूवमेंट एनालिसिस, स्टॉक ट्रांसफर, ये हम लोग सब यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये हम लोग ने आपको स्टॉक ट्रांसफर का बताया था। सिमिलरली अगर फैब्रिक्स है, तो सपोज इनने कोई रेडीमेड गारमेंट बनाया है, तो फैब्रिक कितना गया, दुपट्टा कितना गया, बॉर्डर्स कितना गया। अब इसमें जॉब वर्क नहीं दिख रहा है, तो हम लोग को उनको क्वेश्चन करना पड़ेगा, ये आप सबने साथ में रख के एक रेडीमेड गारमेंट बन गया क्या, कोई तो भी टेलर चाहिए रहेगा, जॉब वर्क चाहिए रहेगा, ये हमको उनको क्वेश्चन करना पड़ेगा। वो सब हम तभी कर पाएंगे अगर हम लोग ये ट्रांसफर ऑफ मटेरियल सब प्रॉपरली चेक करेंगे। मे बी इसका सैलरी जाता होगा तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ऐड हो जाता होगा, इसलिए जॉब वर्क यहाँ पे एक्सपेंसेस पुट नहीं कर रहे हैं। So this was regarding stock, this was regarding debtors, this was regarding sorting, negative ledgers. This is the certain core areas जो हम लोग usually basically सारे audits में सबसे पहले check करते हैं. Now we'll come to this feature of activation of audit and compliances.
ये आपको यूजुअली नहीं दिखेगा अगर आपने इसको प्रॉपर्ली एक्टिवेट नहीं किया होगा। तो फर्स्ट आपका टैली ईआरपी ऑडिटर वर्जन होना चाहिए, तो ही आपका ये फीचर दिखेगा। ऑब्वियसली हम लोग सब ऑडिटर वर्जन ही यूज करते हैं। उसके लिए हम लोग आएंगे गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली पे कंपनी इंफॉर्मेशन, कंपनी इंफॉर्मेशन में सिलेक्ट कंपनी। अब ये मेरी जो कंपनी चालू है वही सिलेक्ट की। ऑल्टर करेंगे हम लोग कंपनी को, कंपनी का जीएसटी नंबर और सब प्रॉपर डाला हुआ है। हम लोग को ये फीचर एक्टिवेट करने के लिए यूजर सिक्योरिटी कंट्रोल यूजुअली नो होता है, हमको इसको यस करना पड़ेगा। हम लोग इसको यस करेंगे तो हमको एडमिनिस्ट्रेटर का नाम पूछेगा। इसका यही लॉजिक है कि अगर हम लोग ऑडिट कर रहे हैं तो हम लोग का ऑडिटर का सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटर आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। हम लोग ये डाल देंगे। फिर यहाँ पे यूज टैली ऑडिट फीचर्स, हम लोग को इसको यस करना पड़ेगा। अगर हम इसको यस नहीं करते हैं तो फिर हम लोग का ऑडिट फीचर एक्टिवेट नहीं होगा। इसको यस करके एक्सेप्ट, तो आपको ये ऑडिट एंड कंप्लायंस फीचर दिखेगा, वरना आपको ये ऑडिट एंड कंप्लायंस फीचर नहीं दिखेगा। अब ये बहुत ब्यूटीफुली वो लोग ने डिजाइन किया हुआ है ऑडिट एंड कंप्लायंसेस में। अभी यूजुअली हम लोग जब अभी ऑडिट क्लाउड बेस्ड पे करेंगे, सिर्फ वाउचिंग प्रोसीजर्स करेंगे या फिजिकली विजिट तो कर नहीं सकते, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग का प्रोग्रामिंग, डॉक्यूमेंटेशन, एनालिसिस और नोटिंग हम लोग सब टीम वाइज यहीं पे रख सकते हैं। हम लोग को मतलब फिजिकल कनेक्शन एकदम जीरो रहेगा। हम लोग को ऑडिट के पेपर्स मेंटेन रखने की जरूरत नहीं है, यहीं से सब प्रिंट्स निकल जाएगी। और अगर क्लाउड बेस्ड है और अगर प्रॉपर सबको लॉगिन्स दिए हुए हैं तो हम लोग सब कुछ यहीं से कर सकते हैं। अगर हम देखा जाए तो पहले यहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑडिट के अलावा स्पेसिफिकली टैक्स ऑडिट का भी फीचर था, जो अभी ये टैली 6.61 में अवेलेबल नहीं है। मे बी दे विल मेक इट अवेलेबल सून। हम लोग इसका एक एक पॉइंट देखेंगे। अब ये काफी डिटेल में है, तो मे बी ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट हम लोग एक एक पॉइंट तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बट इसका जितना मेजर स्टफ है जो हम लोग को डे टू डे ऑडिट्स में लगता ही है, नेसेसरी है, वो सारे पॉइंट्स हम लोग आज कवर करने का ट्राई करेंगे। फर्स्ट थिंग, आपको ये फीचर के लिए आपका टैली ईआरपी ऑडिटर वर्जन होना चाहिए और आपको ये फीचर एक्टिवेट करना पड़ेगा। अपने आप एक्टिवेट नहीं होता है। कंपनी इन्फो में जाके, अल्टर में जाके आपको पहले आपका पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। पासवर्ड सेट करेंगे, फिर आपको यूज टैली ऑर्डर फीचर्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा, तो आपका ये फीचर एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये फीचर एक्टिवेट करने के बाद हम लोग को 4 फीचर्स और इसमें मिलते हैं: डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट एनालिसिस, ऑडिट जर्नल एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब हम लोग एक एक चीज अंदर जाके देखेंगे कि इसमें हम लोग को क्या बेनिफिट हो सकता है। Now this is audit documentation. अब हम लोग ऑडिट प्रोग्राम सेट करेंगे कि हम लोग को क्या करना है। अभी मैंने मे बी किसी XYZ पर्सन को ये परचेज रजिस्टर चेक करने दिया, कितने डेज का टारगेट है, 2 डेज का टारगेट है, उसने एक्चुअली कितने दिन में किया, कोई स्पेसिफिक वेरिफिकेशन, मतलब कितना % एक्सटेंड ऑफ वेरिफिकेशन उसने किया। पर्सन का नाम यहाँ पे हम लोग ऐड भी कर सकते हैं, हम लोग के ऑडिट टीम के मेंबर्स के नाम, पर्सन का नाम एडिट डाला हम लोग ने यहाँ पे। वेरिफिकेशन कोई स्पेसिफिक क्वेरीज रिमार्क होंगी तो वो डाला है। ऊपर मैनेजर ने किसी ने चेक किया है तो उसका डिटेल्स डाला है। अगर किसी हायर अथॉरिटी ने चेक किया है तो फिर हम लोग को ये चेक नहीं करना पड़ेगा। कोई स्पेसिफिक रिव्यू रिमार्क है क्या, वो हम लोग को चेक कर डाल सकते हैं। अब सपोज फॉरेक्स ट्रांजेक्शन मुझे चेक करने थे, फॉरेक्स ट्रांजेक्शन के मैं टारगेट दे देती हूँ 2 to 3 डेज में मुझे करना था। सपोज 3 डेज में मुझे कंप्लीट करवाना है। एक्चुअली कितने दिन लगे, 5 दिन लगे। पहले तो हम लोग टारगेट्स ही देंगे एस्टिमेटेड, फिर एक्चुअल फिगर्स यहाँ पे डालेंगे। एक्सटेंड ऑफ वेरिफिकेशन कितना है, फॉरेक्स ट्रांजेक्शन मुझे 100% वेरिफिकेशन करना था। यहाँ पे कोई पर्सन का नाम, सपोज ये मैंने पर्सन का नाम यहाँ पे डाल दिया कि ही वॉज दी ऑथराइज पर्सन और शी वॉज दी ऑथराइज पर्सन। उसके कोई स्पेसिफिक रिमार्क्स है इससे रिलेटेड, चेकिंग करते टाइम कोई स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन उनको चाहिए कि कोई रिव्यू करे, फिर सीए एबीसी ने इसको रिव्यू किया। कोई रिव्यू कमेंट्स होंगे तो वो कमेंट्स यहाँ पे डाल देंगे। अब हम लोग के ऑलमोस्ट यहाँ पे एवरी फीचर, ऑलमोस्ट एवरी ऑडिट एरिया वो लोग ने प्रोग्राम में कवर करके रखे हैं। अगर नहीं है तो आप ये खुद भी क्रिएट कर सकते हो कि आपको कौन सा ऐसा फीचर डालना है जो आपको स्पेसिफिकली चेक करना है।
तो आपको ये क्या मिलेगा, ऑडिट प्रोग्राम में हर एक पर्सन के साथ आप हर एक पर्सन ने कितना काम किया, कितने डेज का टारगेट था, वो आपको सब मिलेगा। आपको सपोज आपको एमएसएमई ट्रांजैक्शन चेक करवाना है, एमएसएमई ट्रांजैक्शन सपोज 4-5 घंटे का काम था, उसने 3 घंटे में कर दिया, XYZ पर्सन को दिया, 100% वेरिफिकेशन कराया, एमएसएमई रिपोर्टिंग करना पड़ता है हम लोग को आरओसी में, ये भी सीए ने चेक कर लिया। यहाँ पे सब आप डाल सकते हो कि कौन से एक्सटेंट तक चेक किया, ऑडिट प्रोग्राम एस्टिमेटेड कितना था, आपका एक्चुअल टाइम कितना लगा, आपका एक्सटेंट ऑफ वेरिफिकेशन कितना था, और किसने वेरीफाई किया। कोई स्पेसिफिक रिमार्क है तो अगर सीनियर कोई स्पेसिफिक रिमार्क होगा तो सीनियर सिर्फ वही रिमार्क्स पे ध्यान देगा, बाकी कोई रिमार्क्स पे ध्यान नहीं देगा। तो दिस वाज द ऑडिट प्रोग्राम, ये कोई कंपनी का ऑडिट प्रोग्राम बना हुआ है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कितने दिन में किसने कितना एक्सटेंट तक वेरिफिकेशन किसने अप्रूव किया, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। अनदर फीचर, ऑडिट रिपोर्ट। अब यूजुअली हम लोग के ऑडिट रिपोर्ट में पॉइंट्स डालते हैं, वो यहाँ पे इनबिल्ट पॉइंट्स वो लोग ने दिए हुए हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई स्पेसिफिक पॉइंट चाहिए आप खुद ऐड कर सकते हो, आपको चाहिए तो आप स्पेसिफिक पॉइंट आपको नहीं जम रहा है तो आप रिमूव कर सकते हो, या तो आपको वापस जो डिफॉल्ट पॉइंट्स रहते थे वो डिफॉल्ट में आपको सेट करना है तो वापस डिफॉल्ट में सेट कर सकते हो। तो दीज आर दी बेसिक पॉइंट्स जो हम लोग के ऑडिट रिपोर्ट में रहते ही है। कंपनी के इसमें कारों का एक एक डिटेल यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है, एक एक पॉइंट डिस्कस किया हुआ है। अब ये भी हम लोग पूरा डिटेल में चेक कर सकते हैं। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, सफिशिएंट डिस्क्रिप्शन ऑफ एसेट दिया हुआ है तो यस, क्लासिफिकेशन कोई रिमार्क्स है तो स्पेसिफिकली क्लासिफिकेशन किया है। लोकेशन पे, लोकेशन तो अभी हम लोग चेक नहीं कर सकते हैं। क्वांटिटी नंबर ऑफ यूनिट्स चेक नहीं किया है, पेंडिंग है, जा नहीं सकते हम लोग। कॉस्ट देखा था हम लोग ने, ईयर ऑफ परचेज हम लोग ने बराबर देख लिया था, रीवैल्यूएशन में ऐसा कुछ भी नहीं था। जो पेंडिंग है वो हम लोग शो कर सकते हैं कि अभी भी हम लोग का वेरिफिकेशन पेंडिंग है। जो वेरिफिकेशन पेंडिंग नहीं है, कोई रिमार्क्स नहीं है, तो हम लोग फर्दर उसको यस करके जाने दे सकते हैं। अभी ये पर्टिकुलर पॉइंट का हम लोग को कोई स्पेसिफिक कंक्लूजन लिखना है फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड, तो हम लोग स्पेसिफिक कंक्लूजन यहाँ पे लिख सकते हैं। सिमिलरली हर एक पॉइंट दिया है, इन्वेंट्री दिया, आपने फिजिकली वेरीफाई किया है, वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, फिनिश गुड्स कितना है, क्या प्रोसीजर आपने यूज किया, आपको कोई इंटरनल कंट्रोल में या कहीं पे कुछ प्रॉब्लम दिखा जहाँ पे आपको लगता है कि इन्वेंट्री में प्रॉब्लम हो सकता है, क्या इन्वेंट्री के प्रॉपर रिकॉर्ड जो जीएसटी और इनकम टैक्स ऑडिट पर्पस के लिए चाहिए क्या वो मेंटेन किए हुए हैं। स्टैट्यूटरी ड्यूज से रिलेटेड आपको डिटेल डालना है, अनडिस्प्यूटेड ड्यूज कौन से हैं, डिस्प्यूटेड ड्यूज कौन से हैं, ये सब हम लोग को कारों में नेसेसरी होता है। कारों का हर एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी यूजफुल। यूजुअली हम लोग वर्ड कॉपी में ही मेंटेन करते या तो एक्सेल शीट में मेंटेन करते थे, बट ये सारे फीचर्स अब यहाँ पे दे दिए। अगर ये सारे फीचर्स यहाँ पे दे दिए और क्लाउड पे हम लोग को टैली शेयरिंग मिलता है तो आपके सीनियर्स या तो आपके मैनेजर्स आपका ये वेरिफिकेशन यहाँ से देख सकते हैं, आपके कमेंट्स देख सकते हैं, आपको टारगेट्स दे सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ टैली क्लाउड पे आ जाता है। अब एक और उसने चीज डाला है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का चेकलिस्ट। अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए, कौन से एप्लीकेबल है, इन्वेंट्री एप्लीकेबल है, कंप्लाइड है, कैश फ्लो कंपनी नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है, कंटिंजेंसीज एंड इन्वेंट्री एप्लीकेबल तो हो सकता है, ड्यू टू कोविड-19 कंटिंजेंसीज बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है। जो जो आप लोग का एप्लीकेबल है वो आपको येस डालने, क्या आपने वेरीफाई की है, वो कंप्लाइड है तो आपको येस डालना है, वरना नो डालना है। अगर आप नो डाल रहे हो और आपको देखना है कि आपके सीनियर्स चेक करें कि आपने क्यों नो डाला है, तो आप स्पेसिफिक रिमार्क्स यहाँ पे डाल सकते हैं। और हर एक चीज का इसमें हर एक फीचर्स का आप सेपरेट प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यूज भी सेंड कर सकते हैं। आप अगर आपको ये सेंड नहीं करना है, एक आप पीडीएफ आपके सीनियर्स को सेंड कर सकते हैं कि ये हम लोग ने वेरीफाई किया, ये रिमार्क्स है। स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, आपने ऑडिट के टाइम पे स्टैंडर्ड्स फॉलो किया, ऑब्वियसली हम लोग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए बिना ऑडिट करते ही नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन किया, यस डॉक्यूमेंटेशन पूरा किया। अगर कुछ पेंडिंग है तो यहाँ पे हमको डिटेल लिखनी पड़ेगी क्या पेंडिंग है। अभी डॉक्यूमेंटेशन फिजिकली पॉसिबल नहीं है, ऑनलाइन सब कुछ क्लाउड पे है।
हम लोग ने फ्रॉड चेक किया है, हम लोग को एविडेंसेस मिले हैं, बट हम लोग को कंप्लीट एविडेंसेस नहीं मिले हैं। रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल एप्लीकेबल है, बट हम लोग वेरीफाई नहीं कर पा रहे। तो आप लोग एक एक चीज यहाँ पे हर एक ऐसे डिफाइन किया हुआ है कि आपके क्लाइंट्स को कौन सा एप्लीकेबल है और आपने फॉलो किया है या नहीं। अगर नहीं कर पाए तो व्हाट आर द रीजन। So this was about audit documentation. Another important area was audit analysis. अब ये बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन किया है, हर एक आइटम इसमें हम लोग के टैक्स ऑडिट की वो लोग ने कवर की हुई है। यहाँ पे भी सिमिलर वे में हम लोग वर्क अलॉटमेंट कर सकते हैं, टारगेट्स दे सकते हैं, हम लोग रिमार्क्स डाल सकते हैं। अब सपोज हम लोग वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स कर रहे हैं, तो आपको इनके पूरे अकाउंटिंग पीरियड में कितना लेजर है मिलेगा, कौन से लेजर स्क्वायर ऑफ किए हैं ये ईयर में, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ से मिल सकती है। कौन से यूज ही नहीं किया ये साल में, पिछले साल से वैसे ही खड़े हैं, वो आपको डिटेल्स मिल सकती है। कौन से ऐसे वाउचर्स है जो आपके करंट ईयर में ही है, पिछले साल नहीं थे, तो ये भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग को सारी आइटम्स चेक करनी है, तो आप एवरी आइटम्स भी चेक कर सकते हैं। ऑल आइटम्स, सारी आइटम्स चेक कर सकते हैं, या तो आपको कोई स्पेसिफिक आइटम्स ही देखनी है कि अभी नॉट अवेलेबल इन करंट ईयर, जो पहले से ही चली आ रही है। ओनली बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर नॉट यूज्ड इन करंट ईयर, पहले के बहुत साल से चल रहा है, ये साल में कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है, तो वो लेजर क्यों ओपन किया हुआ है। वो सारे क्वेश्चनिंग और वो सारे सॉर्टिंग हम लोग इससे कर सकते हैं। आपको इसमें सारे वाउचर्स मिलेंगे। एक एक वाउचर का डेट के साथ डिटेल मिलेगा कि फर्स्ट वाउचर डेट आपका कब से था। तो दिस इज वेरी यूजफुल अगर हम लोग को सॉर्टिंग करना है, सैम्पलिंग करना है कि हम लोग को क्या चेक करना है और क्या चेक नहीं करना है। तो दिस इज द नाइस वे ऑफ सैम्पलिंग। वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक, हम लोग स्टॉक चेक कर सकते हैं। नॉट यूज्ड, जो ड्यूरिंग द ईयर यूज नहीं हुआ है, वैसे ही पड़ा हुआ है। बाय कर लिया है, सेल ही नहीं हुआ है, तो ये दोनों आइटम है जो बाय करके रखी है, सेल ही नहीं की है, तो हम लोग पूछ सकते हैं कि क्यों स्टॉक में पड़ा है, क्यों सेल नहीं हो रहा है। ये सारी आइटम्स है यूज्ड ओनली इन करंट ईयर, पिछले साल नहीं था, ये सारा स्टॉक हम लोग ने करंट ईयर में बाय किया और सेल किया है, या तो क्लोजिंग बैलेंस में पड़ा हुआ है। तो ये सारी डिटेल्स हमको यहाँ से दिख सकती है। अभी अगर हमको आइटम वाइज देखना है तो हम आइटम वाइज भी देख सकते हैं, ग्रुप देखना है ग्रुप भी देख सकते हैं। अगर सिमिलर कोई कंपनी हम लोग को कंपेयर करनी है, सपोज ये जो चेन ऑफ बिजनेस में, इससे हम लोग को दूसरे क्लाइंट को कंपेयर करना है कि उसका स्टॉक एनालिसिस कैसा है, इसका स्टॉक एनालिसिस कैसा है, तो वो भी ऑप्शन हम लोग को टैली ने अवेलेबल किया है कि इंडस्ट्री हम लोग कंपेरिजन इसमें से कर सकते हैं। वेरिफिकेशन अकाउंट्स देखा हमने। अब अनदर इम्पोर्टेंट फीचर, हम लोग वेरिफिकेशन ऑफ बैलेंस भी यहाँ से देख सकते हैं। जहाँ जहाँ नेगेटिव लेजर्स है वो हम लोग को दिख जाएंगे, इसको डिटेल में देख सकते हैं। कंसोलिडेटेड ग्रुप लेजर वाइज आपको जैसे देखना है, आपको ये हर एक पूरा शॉर्ट में पूरा ट्रायल बैलेंस आपको ये दिखेगा। यहाँ पे ये नेगेटिव डेबिट बैलेंस क्यों है, तो वो आपको रेड में दिखेगा स्पेसिफिकली हाईलाइट करके, तो उस पर आपको कोई एक्शन लेना है तो आप ले सकते हो। अनदर इज एनालिटिकल प्रोसीजर। अब सपोज मुझे चेक करना है कि मेरा लास्ट ईयर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना था, अभी मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है। अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लेट होता है तो भी प्रॉब्लम, अगर कम होता है तो भी प्रॉब्लम, लास्ट ईयर इतने ज्यादा क्यों थे। सिमिलरली हम लोग का इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस हमको देखना है कि ऐसा क्यों है, तो ये एनालिटिकल प्रोसीजर के थ्रू हम लोग वो कंपेयर कर सकते हैं। सपोज मुझे पूरा या तो कोई स्पेसिफिक लेजर कंपेयर करना है तो मैं लेजर भी कंपेयर कर सकती हूँ, स्पेसिफिक ग्रुप कंपेयर करना है तो मैं ग्रुप भी कंपेयर कर सकती हूँ। सपोज मुझे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मुझे लास्ट ईयर 18-19 और 19-20 का पीरियड डालना पड़ेगा, ये मुझे चेक करना है। अब मेरे पास ओपनिंग बैलेंसेस नहीं थे क्योंकि ये डेमो डेटा है। अगर आपके पास ओपनिंग बैलेंसेस है तो यहाँ पे आपको लास्ट ईयर के फिगर्स ऑटोमेटिक आ जाएंगे हर एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, और आपके कितने % वेरिएंस है वो यहाँ पे दिख जाएगा। इससे आपको सॉर्टिंग कर सकते हो कि क्यों अचानक कोई एक्सपेंस कम हो गया या तो क्यों अचानक कोई भी एक्सपेंस बढ़ गया।
So this is the perfect way to do it. आप specific ledger भी कर सकते हो. Suppose मुझे ये ledger देखना है. अब मेरे पास ओपनिंग बैलेंस नहीं है इसलिए यहाँ पे नहीं देखेंगे. आप कोई भी लेजर ऐसे चेक कर सकते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर से. कोई भी लेजर चेक कर सकते हैं. सपोज मुझे चेक करना है कि सेल्स, मेरा अभी का सेल और लास्ट ईयर के सेल में कितने वेरिएंसेस है, या तो मेरे अभी के परचेज और लास्ट ईयर के परचेज में कितने वेरिएंसेस है. इसमें भी मैं डिटेल में जाके देख सकती हूँ. यहाँ पे आपको देखिएगा लास्ट ईयर का डेटा और आपको यहाँ पे वेरिएंस दिख जाएगा. तो दिस इज वेरी नाइस फीचर विच वी कैन यूज सॉर्टिंग के लिए. लेजर से ग्रुप भी कर सकते हैं, ग्रुप से लेजर भी कर सकते हैं, एनी विच वे. स्टैट्यूटरी पेमेंट्स अगर कुछ पेंडिंग है तो यहाँ पे हाईलाइट होंगे. ये डेमो डेटा है इसलिए यहाँ पे पूरा डेटा नहीं है, वरना ये सब हाईलाइट होता था. कौन सा टीडीएस का टीडीएस टीसीएस पेंडिंग है, वैट अब नहीं है, पीएफ का पेंडिंग है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस पेंडिंग है, पीटी पेंडिंग है. तो यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी जो हम लोग को स्टैट्यूटरी ड्यूज पेंडिंग ऑडिट रिपोर्ट में डालना पड़ता है. रिपीटेड ट्रांजेक्शन, प्योर में कोई स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन रिपीट हुआ है, कितने टाइम रिपीट हुआ है, 20 टाइम रिपीट हुआ है, 12 टाइम रिपीट हुआ है, वो सारे मिल जाएंगे. तो जितने रिपीटेड ट्रांजेक्शन अगर उस पर भी आपको चेक करना है तो आप यहाँ से सॉर्टिंग कर सकते हो कि कौन से नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इसके सबसे ज्यादा है. फिर है अदर एनालिसिस. अब अदर एनालिसिस में भी हम लोग एक एक चीज चेक नहीं करेंगे, बट इसमें एक बहुत अच्छा फीचर वो लोग ने डाला है. पार्टी का रिकंसिलिएशन, पार्टी टू पार्टी रिकंसिलिएशन कर सकते हैं. अगर कोई पार्टी रिकंसाइल, हम लोग यूजुअली एक्सटर्नल कंफर्मेशंस मंगवाते ही है डेटर्स या क्रेडिटर्स के. तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर वो भी टैली यूज कर रहे हैं और हम भी टैली यूज कर रहे हैं तो हम लोग सीधा उसका लेजर यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं. और जैसे हम लोग ने 2A और 2 में देखा था कि वो लोग ने ऑटो रिकंसाइल किया था, वैसे ही सिमिलर वे में हम लोग भी ऑटो रिकंसाइल कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं, आई विल शो यू. तो दिस इज द फीचर ऑफ एक्सटर्नल थर्ड पार्टी कंफर्मेशन भी हम वैसे ही ले सकते हैं और हम लोग अकाउंट रिकंसिलिएशन भी वैसे ही कर सकते हैं. अब इसका एक ही स्पेसिफिक चीज है कि हम लोग यूजुअली हम लोग को हमारे क्लाइंट्स या कोई एक्सटर्नल कंफर्मेशन जो देते हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में देते हैं. हमको उनको एक ही रिक्वेस्ट करनी है कि रैदर देन पीडीएफ फॉर्मेट आप हमको एक्सएमएल फॉर्मेट में दो. अब एक्सएमएल फॉर्मेट में अब यूजुअली ये भी फीचर न्यूली एडेड है तो लोगों को पता नहीं है कि एक्सएमएल में कैसे कन्वर्ट करना और हम लोग कैसे दे. तो हम उनको गाइड कर सकते हैं एक्सएमएल में कैसे कन्वर्ट करना है. गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ऑडिट एंड कंप्लायंसेस, स्टैट्यूटरी ऑडिट इन्फो. ये आपको पाथ यहाँ पे मैंने पीपीटी में डिफाइन किया हुआ है, प्रॉपर्ली आपको मिल जाएगा. अब यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स फॉर रिकंसिलिएशन, सपोज मुझे 321 नेटवर्क इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम का लेजर कंफर्मेशन मंगवाना है तो मैं उनको ये प्रोसीजर फॉलो करने के लिए बोलूंगी कि आप गेटवे पे जाइए, डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आप ऑडिट कंप्लायंसेस, स्टैट्यूटरी ऑडिट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड रिकंसिलिएशन में जाके ये पूरा साल का डेटा आप मुझे एक्सएमएल में दे दीजिए. एक्सएमएल में मुझे चाहिए, यहाँ पे मैं मेरा न्यू फोल्डर क्रिएट करूंगी. हमको न्यू फोल्डर में ही लेना पड़ेगा क्योंकि अगर वहां पे और कोई फोल्डर होगा तो हम लोग को डेटा कॉपी करने में प्रॉब्लम होगा. तो ये पाथ सिलेक्ट कर लिया. ये आपको आपके क्लाइंट को बोलना है कंफर्मेशन ऐसे आपको एक्सएमएल में जनरेट करके दे, एक्सपोर्ट यस. फिर आप देखेंगे आपको ये एक्सएमएल फॉर्मेट में पूरा लेजर मिल गया. अब ये आपका पार्टी का लेजर होना चाहिए. जैसे सपोज हमारी बुक्स में हमको चेक करना है नेटवर्क इंफॉर्मेशन सिस्टम का लेजर, तो हम लोग को नेटवर्क इंफॉर्मेशन सिस्टम को बोलना है कि आप एबीसीएन कंपनी का लेजर हम लोग को फेच करके दीजिए. एक बार उसने एक्सएमएल में लेजर फेच कर दिया. अभी यहाँ पे तो ट्रांजैक्शन कम है तो हम लोग अगर कोई डिफरेंस है तो मैन्युअली चेक कर सकते हैं.
बट ऐसे कुछ कुछ ट्रांजेक्शन है जो बहुत ज्यादा है, जैसे ये पार्टी है, इसका बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं, इसके मैच नहीं हो रहा है, तो पहले हम क्या करते थे, कोई आर्टिकल को बैठा देते थे कि चेक कर कौन सा क्या रिकंसाइल नहीं हो रहा है या क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, या तो अकाउंटेंट्स को बोलते थे व्हाट इज द बेसिक प्रॉब्लम। अब हम लोग खुद ये ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि उसमें डिफरेंस क्या है। अब एक बार XML में हम लोग ने ले लिया, उसके बाद हम लोग को जाना है ऑडिट एंड कंप्लायंसेस में, ऑडिट एनालिसिस में, अदर एनालिसिस, अकाउंट रिकंसिलिएशन, या तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन, जो भी आपने XML में लिया हो। हम लोग ने ये पार्टी का XML में लिया है। अब ऑब्वियसली ये तो मैंने आपको बताया कि मेरी बुक्स में से ही XML कैसे लेना है। अब मैंने तो ये और किसी की बुक से XML फेच किया था। अब आई वाज ट्राइंग कि मैं ये फीचर यूज कर पाऊं, बट यहाँ पे वो लोग ने हेल्प, उनका जो हेल्प डॉक्यूमेंट रहता है या तो कोई डिफाइंड टैली का डॉक्यूमेंट रहता है, उसमें अगर हम लोग ट्राई करते ना, अगर मैं यही पाथ कॉपी करने का ट्राई करूंगी तो मुझे एरर ही रिफ्लेक्ट करेगा, फाइल नॉट फाउंड आएगा। So I took high-end support from Tally. What they told me कि आपको ये हाइफन डालना पड़ेगा, एक्सक्लेमेशन, तो ही आपको इसका लिंक मिल पाएगा। Now you have to copy this and paste. ये इंपोर्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा और ये मेरे में आपको इंपोर्ट होता हुआ नहीं दिखेगा, जस्ट बिकॉज मैंने सेमी पार्टी का सेमी बुक्स का किया है। अगर आपका प्रॉपरली इंपोर्ट हो जाता है तो आपको कुछ इस तरह दिखेगा। आई शो यू, ये देखिए, जैसे आपको 2 और 2A के रिकंसिलिएशन दिखते थे, वैसे ही आपको इसके रिकंसिलिएशन दिखेंगे। परचेज सेल मैच हुआ, इसका सेकंड ट्रांजैक्शन भी मैच्ड है। अभी आप देख सकते हैं दोनों के ओपनिंग बैलेंसेस ही मिसमैच थे। अब जो ब्लू में ब्लैक में दिख रहा है वो सारे ट्रांजैक्शन मैच्ड है। अनरिकंसाइल्ड ट्रांजैक्शन ने स्पेसिफिकली अलग करके दे दी है। तो अगर बहुत मेजर डेटर्स या क्रेडिटर्स या एक्सटर्नल कंफर्मेशन बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस के हैं और हम लोग को उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका XML जनरेट कराएंगे। XML कैसे जनरेट करवाएंगे वो हम लोग ने देखा, XML कैसे जनरेट होता है। XML हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट होते ही हम लोग को ऑटोमेटिक रिकंसिलिएशन अकाउंट का मिल जाएगा। तो दिस इज द वे हम लोग डेटर्स क्रेडिटर्स का या तो कोई भी एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले सकते हैं। तो ये फीचर अभी ऑडिट के केस, अगर ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर आपके क्लाइंट में ये ऑडिट एंड कंप्लायंस फीचर नहीं है तो मे बी वो आपको XML में जनरेट करके नहीं दे सकते। आपको उनके ऑडिटर को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि XML में जनरेट करके दीजिए, तो ही आपको XML में जनरेट करके मिलेगा। क्योंकि ट्रांजेक्शन हमने देखा था, रिलेटिव साइज फैक्टर कंपेयर करेगा हाईएस्ट ट्रांजेक्शन और उसके बाद के ट्रांजेक्शन कितना डिफरेंस है। स्टैट्यूटरी पेमेंट्स हमने देखा, पीरियोडिक पेमेंट्स हमको डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट, अब इसमें स्पेसिफिक एंट्रीज नहीं की हुई तो आपको नहीं दिखेगी, आपका डेटा कंप्लीट होगा तो आपको दिखेगा पीरियोडिक पेमेंट्स एंड रिसीट्स। अदर एनालिसिस में भी आप काफी चीजें देख सकते हैं, इंटरबैंक ट्रांजेक्शन देखना हो तो देख सकते हैं, ट्रांजेक्शन्स ऑन हॉलीडे, ये भी एक अच्छा एरिया। आप संडे है तो संडे को इसने सेल और परचेज के बिल कैसे बनाए, इसका बिजनेस संडे ऑपरेट करता है क्या, वो आपको इसको चेक करने के लिए बोलना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, हाईएस्ट एंड लोएस्ट ट्रांजेक्शन ऑफ पर्टिकुलर लेजर। कोई लेजर में सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट ट्रांजेक्शन क्या था, उसका डिफरेंस क्या और रेंज क्या है ट्रांजेक्शन की, ये भी आपको यहाँ से मिलेगा। पेंडिंग एडवांस, बहुत टाइम से एडवांस पेंडिंग है, इसका शॉप डिपॉजिट पेंडिंग है तो यहाँ पे दिखेगा आपको। एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी आप ऐसे ही XML मंगवा के चेक कर सकते हैं। और अकाउंट्स रिकंसिलिएशन आप इसमें भी आप सॉर्टिंग यूज कर सकते हैं। F12 आपको देखना है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे ओनली अल्फाबेटिकली ऑप्शन है। आप डेटर्स क्रेडिटर्स में स्पेसिफिकली जाके वो देख सकते हैं कि कौन से हाईएस्ट अमाउंट के डेटर्स या क्रेडिटर्स है, या तो ऐसे कौन से डेटर्स क्रेडिटर्स है जिसमें पूरे साल इसमें बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन है, उसका आप लोग कंफर्मेशन मंगा के इससे डायरेक्टली ऑटो रिको कर सकते हैं। अब एक और बहुत अच्छा फीचर टैली ने दिया है ऑडिट में, ऑडिट सैम्पलिंग का।
अच्छा, एक और ट्रांजेक्शन आई वुड लाइक टू, एक और फीचर आई वुड लाइक टू डिस्कस इट विथ यू, रिलेटेड पार्टी का। रिलेटेड पार्टी या तो एमएसएमई ट्रांजेक्शन यूजुअली हम लोग को बाइफरकेट करने पड़ते हैं, हमारे ऑडिट रिपोर्ट में भी बाइफरकेट करने पड़ते हैं, हम लोग इसके थ्रू वो बाइफरकेट कर सकते हैं। इसमें हम लोग को फीचर दिया हुआ है, अगर आप देख सकते हैं टैली में वेरिफिकेशन ऑफ वाउचर्स, अभी ये भी बहुत, तो अभी इसके बुक्स में आप देख सकते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज है, क्रेडिट नोट्स है, जर्नल वाउचर्स, पेमेंट, परचेज, सेल। अभी आपको प्लानिंग करना है, इसमें ये भी दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ वाउचर्स कितने हैं। अभी आपको चेक करना है, सपोज सेल्स चेक करना है, तो ऑब्वियसली हम 100% सेल तो चेक नहीं करेंगे। अब आप देखेंगे नवंबर मंथ में सबसे ज्यादा वाउचर का एंट्री किया हुआ है। अगर आपको लगता है कि सब ठीक है तो ऑडिट विदाउट रिमार्क डालना है, विदाउट रिमार्क के साथ डालना है। तो वैसे किसी से आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना है, सपोज ये पार्टी से मुझे एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना है, तो मैं इसको डाल दूंगी एक्सटर्नल कंफर्मेशन की कैटेगरी में। किससे कंफर्मेशन लेना है वो भी आप लोग डाल सकते हो, कोई स्पेसिफिक पर्सन है जिसको आपको कांटेक्ट करना है। अगर मुझे ये सेल इनवॉइस में डाउट है कि मुझे इंटरनली कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है क्लाइंट से, तो मैं इंटरनली इन्फॉर्मेशन लेना है, मुझे क्या नोट डालना है उसका मैं ये नोट डाल सकती हूँ। तो स्पेसिफिक आप देख सकते हैं ये सारे। अब ये मेरा ऑडिट हो गया, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये मैंने ऑडिट कर दिया। ये भी मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऑडिट कर दिया। सपोज ये ट्रांजैक्शन मुझे लगता है कि नहीं, इसका बिल बराबर नहीं है या तो कोई प्रॉब्लम है, मैंने ऑन होल्ड रख दिया। तो ये आपको सब कुछ दिखेगा कि आपने इसमें से कितने ऑडिट किए, कितने के एक्सटर्नल कंफर्मेशन पेंडिंग है, कितनी पार्टी से इंटरनल ऑब्जर्वेशन हम लोग को लेना है। आप ये सब कर सकते हो ये फीचर के थ्रू। आपको यहाँ पे दिखाएगा आपने ये मंथ में ऑडिट कितने वाउचर्स किए हैं, सैम्पलिंग कितना किया है टोटल। आप इससे भी सैम्पलिंग में आके देखेंगे। अब सपोज मुझे जर्नल एंट्रीज चेक करनी है, जर्नल एंट्रीज राउंडिंग ऑफ सेल, चलो ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब बराबर है। बट अगर ऐसी कोई जेवी पास की हुई है जो आपको लगता है कि ठीक नहीं है, अभी यहाँ पे सिर्फ 10 रुपीज डेमो डेटा है इसलिए 10 रुपीज डिस्काउंट डाला हुआ है। अगर आपको लगता है कि डिस्काउंट का अमाउंट बहुत ज्यादा है कंपेयर टू सेल और परचेज, तो आपको ऑब्जर्वेशन लेना पड़ेगा, तो आप वो सैंपल अलग करके रख सकते हैं। तो इसमें एंड में ऐसा होगा कि जहाँ पे आपको या तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना है या तो इंटरनल कंफर्मेशन लेना है, वो सारे वाउचर्स में से एंट्री सेपरेट हो जाएगी और आपको वो शॉर्ट MIS डेटा मिल जाएगा। ये सैम्पलिंग के लिए। अभी इंपॉर्टेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। अब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आप फर्स्ट कैसे डालेंगे, ऑडिट एनालिसिस में ही ये मास्टर कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है। यू हैव टू गो टू मास्टर कॉन्फ़िगरेशन, रिलेटेड पार्टी। नाउ सपोज दिस AAA इज माय सिस्टर कंसर्न, तो मैंने डाल दिया सिस्टर कंसर्न। ये DDD इज माय सिस्टर कंसर्न, मैंने डाल दिया सिस्टर कंसर्न। दिस डेमो पार्टी इज माय ब्रदर, दिस EE इज माय सिस्टर, yes she is related party, sister, is my brother's shop। मैंने रिलेटेड पार्टी डिफाइन कर दी है। दिस लाइफ सोल्यूशन इज वाइफ, रिलेटिव, दिस इज माय हस्बैंड, वाइफ, व्हाटएवर, इन माय केस हस्बैंड ऑब्वियसली। तो ये मैंने बाइफरकेट कर दिया यहाँ पे। अब जब मुझे स्पेसिफिकली रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन देखना है तो ऑडिट एनालिसिस में मुझे यहाँ पे स्पेसिफिकली रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन दिख जाएंगे। 114 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। कौन से मेरे पर्सन है रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शन में, मेरी सिस्टर कंसर्न, ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ, जो भी है, सबके पूरे ईयर में कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं। अब ये 97 ट्रांजैक्शन सबसे हाईएस्ट ट्रांजैक्शन की है मैंने सिस्टर कंसर्न के साथ। हम लोग वैसे भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करते हैं। अगर हम लोग अंदर जाएंगे तो हम लोग को मिलेगा कि हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने सेल किया है, सेल ट्रांजैक्शन थे, ये भी सेल ट्रांजैक्शन थे, ऑलमोस्ट सब डेटा दिए, सेल ट्रांजैक्शन की है, किसी को सैलरी दी, एक्सपेंस दी, हम लोग कोई भी पर्सन को रिलेटेड पार्टी में डाल सकते हैं। सिमिलरली ये मास्टर कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हम लोग को MSME ट्रांजैक्शंस भी सेपरेटली शो करने पड़ते हैं।
MSME ट्रांजैक्शन मैंने एक ही पैकिंग को स्मॉल रखा है, माइक्रो रखा है, हमको जैसे पता है अब सबके MSME नंबर्स होते हैं स्पेसिफिकली। सपोज ये मानसी क्रिएशन है, मानसी की क्रिएशन मीडियम है, मीडियम साइज, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर उनसे लेना पड़ेगा, प्रूफ होना चाहिए कि MSME में आते हैं या नहीं। मिस्टर जावेद है, मिस्टर जावेद इज माइक्रो, रजिस्ट्रेशन नंबर हम लोग ने उनसे डाल के रख दिया, तो हम लोग को MSME की डिटेल भी स्पेसिफिकली यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप देखेंगे पूरे ईयर में 10 MSME के ट्रांजैक्शन है, स्मॉल में है, माइक्रो में बाइफरकेटेड है, मीडियम फॉर्म है, कैसी फॉर्म है, कितने वाउचर्स है, उसके साथ आपने ट्रांजैक्शंस क्या किए हैं, परचेज किया था, ऑन अकाउंट पेमेंट किया है, परचेज किया था, पेमेंट कर दिया है, या आपको स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस दिख जाएंगे। तो अगर इन केस ऑफ कंपनी हम लोग को ROC में डिटेल्स देनी ही पड़ती है, उसके अभी ये 30 जून को MSME का भी रिपोर्टिंग है, तो हम लोग ऐसे उसको पहले से बाइफरकेट करके रख सकते हैं। हम लोग के ऑडिट रिपोर्ट में भी काम आएगा, ROC के रिटर्न्स में भी ये डिटेल्स जाती है। So this was about related party, this was about MSME, specifically bifurcate कर सकते हैं। डैशबोर्ड हमने देखा, डैशबोर्ड इसको बोलते हैं डैशबोर्ड, ऑडिट का डैशबोर्ड, उसमें से हम लोग ने कितना परसेंट चेकिंग किया है, सैम्पलिंग हम लोग ने 50% ऑडिट किया है, 4% ही सैम्पलिंग किया है, इंटरनल ऑब्जर्वेशन हमको कौन से ट्रांजेक्शन के लेने, एक्सटर्नल कंफर्मेशन हम लोग को किसके लेने हैं, उसमें से हम लोग के रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कौन से है, MSME ट्रांजेक्शन कौन से है। अब यहाँ पे ये डेमो डेटा में फॉरेक्स के ट्रांजेक्शन नहीं है, यहाँ पर ना यहाँ पे फॉरेक्स के ट्रांजेक्शन हाईलाइट होते हैं। स्पेसिफिकली सैलरी एंड वेजेस के पेमेंट PF के लिए हम लोग को डिटेल चाहिए रहती है, तो वो भी हम लोग को यहाँ पे बाइफरकेशंस करके मिल जाती है। तो दिस इज अ वेल टू डू डैशबोर्ड फॉर ऑडिट एनालिसिस, जो अभी हम लोग को वर्क फ्रॉम होम में बहुत ज्यादा काम आएगा। सिमिलरली ऑडिट जर्नल का फीचर दिया हुआ है। अब ऑडिट जर्नल में जो यूजुअली हम लोग क्लोजिंग एंट्रीज पास करवाते हैं, ये एक शॉर्ट एग्जांपल है सैम्पलिंग का। रिलेटेड पार्टी, फॉरेक्स, MSME सब कुछ ओपन है। 37 ट्रांजैक्शन से कितने क्लैरिफाई, कितने अल्टर, कितने ऑडिट किए हुए हैं, सब कुछ यहाँ पे दिखेगा। अब ऑडिट जर्नल में हम लोग एंट्री पास करेंगे। यूजुअली अगर कोई फाइनलाइजेशन एंट्री होंगी या तो एंड में हमको डेप्रिसिएशन के प्रोविजंस करने हैं, टैक्स प्रोविजंस करने हैं, तो हम लोग ऑडिट जर्नल के थ्रू एंट्रीज पास करेंगे। यहाँ पे हम लोग को स्पेसिफिकली दिखेगा कि ये क्लोजिंग एंट्रीज है। यहाँ पे देखेंगे F7 का ऑप्शन है, यहाँ पे हम लोग वो जर्नल क्लोजिंग एंट्रीज पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सारी क्लोजिंग एंट्री के बाइफरकेशंस एक साथ मिल जाएंगे। सिमिलरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट आपको बनी हुई दी है। आपको लास्ट ईयर का कंपैरेटिव चाहिए तो वो भी आप इसमें से फेच कर सकते हैं। अब मेरे पास लास्ट ईयर का डेटा नहीं है इस पे, तो मैं आपको फेच करके नहीं दिखा सकती, वरना आप फेच कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा जैसे हम लोग को वर्टिकल फॉर्मेट में चाहिए मिल जाएगा। कोई एडिशनल डिटेल स्पेसिफिकली हम लोग को चाहिए, हम लोग ने चेक किया है जैसे कंपनी के केसेस में, तो ये सारी रिलेशनशिप डिटेल्स और हम लोग सब डेटा इसमें डाल सकते हैं। पर्टिकुलरली अगर कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, व्हाटएवर कंपनी, तो दिस फीचर्स आर वेरी मच यूजफुल फॉर दैट। बड़े कंपनीज में हम लोग ये फीचर्स बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं ऑडिट के। So this was the statutory audit related points. ऑडिट जर्नल में हम लोग ने देखा, हम लोग क्लोजिंग एंट्री पास कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक एप्रोप्रिएशंस है तो वो दे सकते हैं, प्रायर पीरियड आइटम्स है, इंटरेस्ट प्रोविजंस करने हम लोग को ईयर एंड में, तो इंटरेस्ट प्रोविजंस, तो जितना आपने यहाँ पे एंट्री डाला होगा क्लोजिंग का, आपको टोटल नंबर ऑफ वाउचर्स यहाँ पे दिख जाएंगे स्पेसिफिकली। So this was about the auditing features from Tally. And as sir said कि इनका क्लाउड बेस ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, इनका ऑपरेशन में आने वाला है टैली का। तो क्लाउड बेस में व्हाट दे आर प्लानिंग, फर्स्ट थिंग ये सेफ्टी हम लोग को बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम लोग को क्लाउड बेस्ड टैली मिल जाता है तो हम लोग क्लाइंट, अगर हमको क्लाइंट भी एक्सेस दे रहा है तो हम लोग को डायरेक्ट क्लाइंट का डेटा हम लोग घर पे बैठ के हम लोग के लैपटॉप पे, पीसी पे फेच कर सकते हैं। हम लोग वो पर्टिकुलर स्टाफ के साथ भी शेयर कर सकते हैं। हम लोग का कोई ऑडिट का डेटा है वो भी हम लोग स्टाफ के साथ या तो टीम मेंबर के साथ या तो क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं।
तो वो अगर एक्टिवेट हो जाता है तो ये ऑडिट फीचर इज वेरी यूजफुल, स्पेसिफिकली ऑडिट प्रोग्राम जहाँ पे आप आपके पूरे टीम को स्पेसिफिकली आप पर्सन को बता सकते हैं कि आपको कौन सा यूनिट या कौन सा पर्टिकुलर आइटम है जो आपको ऑडिट करना है। हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, कारो रिपोर्ट सब कुछ हम लोग को रेडी यहाँ पे मिलता है। हम लोग को मैन्युअली अकाउंट रिकंसिलिएशन करने की भी जरूरत नहीं है, हम लोग को सीधा उनसे XML मांगने हैं। अब ये बैंक में भी एक ऑप्शन, अगर बैंक में भी आपको डायरेक्ट रिकंसिलिएशन करना है, बैंक रिकंसिलिएशन, तो टैली ये भी ऑप्शन देता है कि आप बैंक का सीधा एक्सेल फॉर्मेट या तो बैंक का जो स्पेसिफिक फॉर्मेट टैली अलाउ करता है वो सीधा बैंकर से लेके या नेट बैंकिंग से आप डाउनलोड करके इंपोर्ट करो तो आपका बैंक रिकंसिलिएशन भी हो जाएगा। एक बार मैं आपको बता देती हूँ कैसे होता है। अभी मेरे पास रेडी बैंक स्टेटमेंट नहीं है, बट वो फीचर कैसे यूज होता है वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। वील गो टू बैंकिंग, then we'll go to bank reconciliation. Suppose there are two banks, I'll go to IDBI Bank. IDBI Bank में आपके पास ऑप्शन है बैंक स्टेटमेंट। We'll go to this bank statement. अब यहाँ पे अगर आपके पास सब बैंक स्टेटमेंट्स ऑलरेडी अवेलेबल है तो आपको फाइल का पाथ देना पड़ेगा। फाइल का पाथ आप जैसे ही देंगे तो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। तो जैसे हमने 2A का देखा या तो अकाउंट रिकंसिलिएशन का देखा, वैसे आपको डायरेक्ट बैंक का रिकंसिलिएशन यहाँ पे मिल जाएगा। रिकंसाइल्ड एंट्री सेपरेट हो जाएगी और जो नॉन रिकंसाइल्ड एंट्री है वो आपको अलग से दिख जाएगी। तो ये आप यूजुअली लोन ट्रांजैक्शंस में भी कर सकते हैं और बेसिक बैंक अकाउंट में भी यूज कर सकते हैं। और आपको इससे रिलेटेड कोई भी स्पेसिफिक क्वेरी जो GST से रिलेटेड, कोई स्पेसिफिक फीचर्स से रिलेटेड, तो आप या तो मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट या ईमेल कर सकते हैं या तो आप नागपुर ब्रांच को भी डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं। आप मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, CA धारा गांधी @CACS अपडेट, जहाँ पे मैं यूजुअली कोई ना कोई टैली का या GST रिलेटेड या इनकम टैक्स से रिलेटेड या सेमिनार से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ। So for any detail you may contact me. Thank you. I would like to call Kirit Kalyani sir. Sir. Yeah, that was a really nice mix. So go to Akshay bhai. Thank you so much. Thank you so much, Dharaji, for such a full discussion. You went through in detail for all the parameters of Tally. Definitely, there must be a lot of questions in the mind of participants now. I open the forum for question answer session. If any of the participant has any question, definitely they can ask the questions in the question panel available there. Dhara, there is one question now from Nikhil Karwaji. PMS, that is Portfolio Management Services, company accounting, company level shareholding, client-wise shareholding, client-wise gain-loss statement, and company gain-loss statement. Okay. I don't know what they are asking, how to maintain this PMS. Okay. So may I request him to kindly either mail me this query or mail you this query, because this query is very time consuming. So I'll definitely reply him maybe today or maybe tomorrow in detail. So can I have his query on email so we can, follow it on a later stage? We will send you the mail then. Sure. One more question by Khushbu Shah ji. If the same transaction is recorded at different dates in the books of purchaser and seller, then will it be shown under reconciled or unreconciled? No. If in case of any change in dates or invoice number or even any minute change in amount, suppose 1 lakh amount is showing in one book and 1 lakh 1 rupee showing in another book. One example I showed you कि maybe GST के अमाउंट में कुछ ना कुछ डिफरेंस आता ही है पॉइंट का। अगर पॉइंट का भी डिफरेंस आता है तो वो अनरिकंसाइल्ड में चले जाएगा। अगर वो अनरिकंसाइल्ड में गया तो उसका रीजन आपको साइड में दिखेगा कि क्या अनरिकंसाइल्ड में। आप लोग को मैन्युअली उसको एक्सेप्ट करने का ऑप्शन है, तो हम लोग जाके उधर मैन्युअली टैली में उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो वो रिकंसाइल में क्लासिफाई हो जाएगा। बट अगर इसमें कुछ भी डिफरेंस होगा तो टैली ने ऐसा प्रोग्रामिंग किया है कि रिस्क नहीं लेंगे, अगर पॉइंट पे डिफरेंस है तो वो अनरिकंसाइल्ड में चला जाएगा।
इवन 2 एंड 2A में भी यही प्रॉब्लम आता है, मतलब यूजुअली मैं ये फीचर यूज करती हूँ, तो अगर इसमें भी या तो माइन्यूट इनवॉइस नंबर में चेंज है या तो राउंडिंग ऑफ में भी चेंज है, 1 रुपी का भी चेंज है, तो वो अनरिकंसाइल्ड में चला जाता है, फिर हम लोग को मैन्युअली जाके उसको एक्सेप्ट में डालना पड़ता है। Ma'am, again they have asked whether they are asking in terms of external confirmation. ओके ओके, तो एक्सटर्नल मतलब इज देयर क्वेश्चन और सेम वन कि अगर कुछ भी डिफरेंस होगा तो पॉइंट, तो वो मतलब टैली में वैसा ही डिजाइन किया हुआ है कि अगर कुछ भी है तो वो अनरिकंसाइल में जाएगा, बट आपको एंट्री आसपास दिखेगी। सपोज 1 जनवरी की एक के बुक्स में एंट्री की हुई है, सेकंड बुक्स में वो लोग ने 2 जनवरी की एंट्री की हुई है, बट वो अमाउंट और पार्टी आपको ऊपर नीचे ही दिखेंगे, तो आप उसको एक्सेप्ट करके रिकंसाइल में क्लासिफाई मैन्युअली कर सकते हैं। बट अगर थोड़ा भी डिफरेंस है, अब ये तो प्रैक्टिकल इशू यूजुअली आ ही रहा है, अगर थोड़ा भी डिफरेंस है तो टैली तो उसको अनरिकंसाइल में ही शो करेगी। Okay. Ma'am, one more question by Kailash Mehta ji. In Tally, can we use 2 different dates for purchase date and GST return date? 2 different days? 2 different dates for purchase dates and GST return. Matlab, what is the exact query? I am unable to understand. I couldn't understand as well. Kailash sir, if you are there, kindly write the query in brief again. We will move on to the next query. Can you please help with how to do foreign currency accounting in Tally, if possible, in automated manner rather than manually converting amount and then posting? Yes, I can definitely help, but similarly, this is very time-consuming query. So either you need to mail me or you need to mail on branch email ID. So I'll revert you through email only, or either I'll share my contact number. You can directly contact me. I'll help you out regarding that. Okay. One more question. How Excel sheet of sale and purchase can be imported in Tally for the entry? Excel sheet, do they need to import or do they need to export Excel sheet? Import. Just a minute. I need to check that. There is no option of importing. For sale purchase. No. There is no option of importing. I never came through this sort of query or this sort of option of importing the entire sheet or auto entries pass. I never came through this option, but I'll definitely try to fetch information regarding this option if available. But as of now, there is no such option available of auto passing of entries through Excel sheet. Maybe there are a lot of add-ons available and APIs available for Tally. So This was the basic auditor version which I showed. Maybe people customize it or our clients customize it according to their needs. So that customized things we need to see कि वो क्या है, because that is business to business and person to person wise customized. One question from Shruti K. How to view all sundry debtors and creditors with the bifurcation exceeding 6 months and not exceeding 6 months? Please explain for companies with Schedule 3 view and also for non-companies. Similarly, I showed you option of classification of debtors or creditors age-wise. So what you need to do is you need to go to gateway, then display, exception report. This is overdue, receivable or payable, whichever you want to see. Go to this option age-wise. You want aging as per bill date or you want aging as per due date. You select your option and you need to put days here, that how you want 0 to 90 days, you want 0 to 180 days, so you will get that bifurcation. But for this, one precaution you need to take is usually what people do is usually accountants on account entries pass कर देते हैं सेल का या परचेज का, तो बिल टू बिल आपका एंट्रीज मैच नहीं होगा. अगर बिल टू बिल एंट्रीज मैच नहीं हो रहा है तो वो आउटस्टैंडिंग में खड़े रहेगा, नंबर ऑफ डेज वहां पे दिखेगा.
तो यू नीड टू रिक्वेस्ट योर क्लाइंट्स कि आप अकाउंटेंट के थ्रू वो बिल टू बिल सेट करवा के दो, अन अकाउंट एंट्रीज को अवॉइड करो। तो आपको ये पूरा एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन एजिंग के थ्रू डेटर्स में भी और क्रेडिटर्स में भी अवेलेबल हो जाएगा। Ma'am, we will go for last question. The query is, while creating a stock item in Tally, rates and opening stock quantity is entered. How to set two different rates for the same stock item? मतलब that is not possible. There can't be two rates for same stock item. But I showed you the example कि suppose मोबाइल का example पहले 18% में था, फिर 12% में हुआ, during the year rate change हुआ। So what accountant do is वो लोग मोबाइल 1 या मोबाइल 2 या मोबाइल 3 ऐसे डिफरेंट स्टॉक क्रिएट करके मल्टीपल स्टॉक क्रिएट करके रखते हैं, which is not correct। हम लोग को एंड में रिकंसिलिएशन में प्रॉब्लम होता है। So I showed you the feature जहाँ पे हम लोग जाके जीएसटी में जीएसटी रेट जाके चेंज कर सकते हैं। हम लोग को टैली स्पेसिफिकली पूछता है कि कौन सा इफेक्टिव डेट है जहाँ से रेट चेंज हुआ है, वो इफेक्टिव डेट हम लोग को वहाँ पे पुट करना है। फिर वो डेट के आगे के जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे एग्जाम्पल मोबाइल के, तो वो सारे न्यू रेट्स में आएंगे। बट दिस इज मैंडेटरी, मतलब इफेक्टिव रेट वो पूछेगा ही। इफ दे रेफर टू माय पीपीटी व्हिच आई विल शेयर इट विद यू डेफिनेटली, तो उसमें आपको उनका पूरा पाथ और कैसे चेंज करना है वो सारा डिटेल्स उनको वहां से फेच हो जाएगा। Okay. Thank you so much, Dara ma'am, for following the questions. There are a lot of questions there. Definitely those questions which will need time. We are going to mail you the questions, and once you revert back, we will reply to the participants. Thank you so much for that. Now it is time to say goodbye to all the participants. I think Chairman of Bhuj branch, Jitendra Thakur ji, is not here. May I now request Harshit Shah ji to give his concluding remarks. Harshit sir. Harshit sir, am I audible? Yes, sir. Sir, please give your concluding remarks, sir. Hello. Sir, you are audible, sir. Hello. Yes, sir, you are audible. Please go ahead, sir. Okay. Thank you, madam. Thank you for your value addition about Tally today. And we are very thankful to Nagpur and other branches to have us on this board, and also looking forward to have some more value addition about Tally software on some basics and some advanced options in future, madam. So thank you, madam, for today's session. Thank you so much, Harshit sir. Thank you so much. Now I request Chairman of Bhuj branch, Jitendra Thakur ji, to please give his concluding remarks. Over to you, Jitendra sir. Good evening, all the members. We have a very good learning experience on the Tally Essential from the expert speaker, Dara Gandhi. We are privileged to be part of joint hosting of the program, today's program on the Tally Essential. So thank you. Credits goes to the chairman of Nagpur branch, Kirit ji, and entire managing committee of Nagpur branch. We will do more and more program for the benefit of members. So we will do joint program. Thank you in near future. Thank you. Thank you so much, Jitendra sir. On behalf of Nagpur branch of WSO of ICAI, I thank our Central Council member, C.V. Chitray sir, for sparing his valuable time and guiding the participants. I thank the speaker of today's session, Dhara ma'am, for giving a quality time and enlightening the participants and solving the queries as well. Thank you so much, ma'am. Last but not the least, I thank all the participants of Nagpur branch, Bhuj branch, Bharuch branch, Satara branch, and Pimpri Chinchwad branch for sparing their time and attending the webinar. Thank you one and all. Thank you so much. We are signing off. Thank you, sir. Thank you.